It's time to greet you. It's time to welcome you on GGC Sports Time. I am Munawar Tanveer, alongside me Sheikh Nazir in the com box. The news from the Suntrays: RPCC Wathoora won the toss and their captain straight away decided to bowl first in this all-important semi-final number 2 of Future World T20 Cricket League GoGo 2022. This is the second edition, and Said Shaheen Shabir, thank you for Allah, and Sport DS, Munazim and others, thank you. This is just the start of this all-important high-octane semi-final match. And a choice to Crockery and others, thank you. Tantre Shafi. And it's believed to be the high voltage and high octane. It's going to be a heck of an encounter between the two teams, RPCC Wathoora and the other side. The two big teams are locking horns here at the Sun in this all-important cricket match. Toss won by RPCC Wathoora captain, and he decided to bowl first, asking other side to bat on in this all-important semi-final number 2. It is GGC Humhama taking on RPCC Wathoora. Bright sunshine out here and a little dispersed clouds on the sky at the moment, and we can see that beautiful outfield on either side of the track, even at the long stop at the straight hit area is concerned. And if Shahid Nazir wants to know the playing 11, you will be updated, don't worry, in a while. You can join us in numbers. We got big names of the valley. Rafiq Baba is playing in this match, Imtiaz Mallah will be playing, and Dr. Sajjad is also playing, and Zaid Lefty will be playing. Imtiaz Lefty, big names of the valley are the part of two teams, and Samar is also playing. So the big names of this part of the world are going to lock horns, and we are about to get underway with this all-important game number 2, which is semi-final number 2 to be precise. Well, Nazir, it's the high time to welcome you also in the com box. Sohail and others, thank you. Nazir, how do you do nowadays, and what are your brief comments about today's match? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत सभी व्यूअर्स का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से, और खूबसूरत मुकाबला इस समय शुरुआती क्षण दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जो कि आरपीसीसी वाथुरा और जीजीसी हुमहामा के विरुद्ध शुरू होने जा रहा है। हालांकि आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है आरपीसीसी की टीम ने, और आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से शुरुआत होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रारंभिक जोड़ी इस समय बीच मैदान में पहुंच चुकी है। एक खूबसूरत आकर्षक वातावरण और आकर्षक फील्ड प्लेसमेंट लगा के रखी है वहां पर रियाज पीर ने। ये देखते हुए प्रारंभिक जोड़ी पे एक प्रभाव बनाने की कोशिश की जाएगी शुरुआती क्षणों में। सभी व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं, स्वागत करना चाहेंगे। और इधर पहली पारी शुरू होते हुए तौसीफ इम्तियाज लेफ्टी इस समय सामना करने के लिए तैयार, जो कि प्रारंभिक जोड़ी के रूप में इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। और हमारे व्यूअर्स लगातार हमारे साथ बने हुए, अयान फारूक वार और सैटी हिलाल, इम्तियाज लेफ्टी और हिलाल की जोड़ी समय बीच मैदान में। सामने वाले छोर से तौसीफ शुरुआत करेंगे। पहली गेंद, अच्छी गेंद इस बार मिडल स्टंप पे आते हुए, और सम्मानजनक रूप से वहां पर इम्तियाज लेफ्टी ने खेला बगैर किसी रन के। तो शुरुआत हो चली है इस सेमीफाइनल मुकाबले की, जो कि इस महत्वपूर्ण मुकाबले का, जो कि बीच मैदान में महत्वपूर्ण मुकाबला आरपीसीसी और जीजीसी हुमहामा के विरुद्ध चलता हुआ। एक गेंद हो चुकी है, पारी की दूसरी गेंद देकर के तैयार उस छोर से तौसीफ। इम्तियाज लेफ्टी के लिए अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर अपने आप को संतुलित करते हुए बैकफुट पर जाकर के इसको खेला बगैर किसी रन के। Well, it's 2 dots on the chart. It's none for none in over number 1. We'll have to wait and watch. Tausif is bowling, and one of the prolific stars of this part of the world, Imtiaz Lefty, is on strike. Next ball from Tausif, and on strike will be Imtiaz Lefty once again. Oh, that's full. Oh, that's in the air. But it dropped short of the fielder there at long on boundary, what could have been easy dismissal. But in the end, he survives that very scare on that occasion. As he was trying to lift that one up, does in style, but luckily the ball didn't carry to the fielder standing there at long on area. And Imtiaz Lefty gets underway with that single, and Ehsan writes in about Walaikum Salam Miraj and others, thank you. But Ehsan writes, amazing weather, absolutely right, and you nailed it to perfection. It's 1 for none in over number 1 with that single. GCC Humhama are underway, and it's Imtiaz Lefty underway with that single. Now it comes down to Hilal. Hilal is on strike, and Tausif will be bowling to
Hilal. And Dar Ahsan writes, it's raining in my village. I don't know where from you are. And Bashir Tan and others, thank you. It's 1 for none in over number 1. Samar at first slip, gully back with a point. Extra cover, long off. It's mid off, long on the fans. There is Imtiaz Mallah fielding. Azhar Sultan, thank you for your love. Con Jams and others. Oh, that's a good ball once again. Pitching on middle and off on that occasion, almost near goaling spot. Nazir on that occasion, and batsman remains circumspect in playing it back to the bowler for no run. It's 1 for none. Wasim, Majid Baba, Rashid Kitab and others, thank you. Mirajuddin, it's 1 for none. We are in over number. Imtiaz Mallah is at long on, and then Scalag in place, and Riaz Peer is at back with Scalag on that occasion. The ball ballooning up in the air for a while, but it falls in no man's area. And both the batters managed to scamper through for a quick single. One more run added to the tally. It's 2 for none in over number 1. And we are on the way with this great game of cricket. This is semi-final number 2 coming your way. And Ayan Khurshid writes in, and he is talking about that. Don't worry, he will be updated. I got my colleague in the com box, Ayan Khurshid, and Sahil Bhatt and others. Thank you, RK Sajjad. Next ball, Imtiaz lefty. It's 2 for none in over number 1. Tausif will be bowling from the far end. Tausif starts running in. On strike will be Imtiaz lefty. The big name of the valley is on strike. Here comes Tausif once again, and bowls to lefty of the outside edge. Down towards the gully for no run. It's a dot ball to end the first. It's 2 for none after the completion of over number 1. Mohammad Akif, thank you. Mirai, but Ijaz, Sahil Sajjad and Khan James and others, thank you for tuning into the live broadcast. Play me big names of the valley are playing. Riaz Peer is playing, a legendary player. Imtiaz Mallah, another legend of the sport, is also part of the match. And Rafiq Baba is playing. Rais Kohli is there. Dr. Sajjad is there, isn't? And they got Zaid lefty is there. And Imtiaz lefty, Rais Kohli. These are the big names. Summer is also playing, and he loves to go downtown, and he can really take the team on a given day. RK Sajjad, thank you. Javed Yutu and Mirai and others, thank you. Nazir, at the moment, just the beginning of the match, 2 for none, but we won't say anything because with the passage of time, things are going to change. बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। हालांकि शुरुआती क्षण है इस मुकाबले के, और ऐसे में संयम आत्मविश्वास के साथ दोनों बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी होगी। शुरुआती क्षणों में एक मजबूत, ठोस और विश्वसनीय आधारशिला वहां पर देनी होगी अपनी टीम को, और उसी के चलते इस समय प्रारंभिक जोड़ी एक दाएं हाथ का बल्लेबाज और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज, हालांकि हिलाल इस समय सामना करने के लिए तैयार। शुरुआत आज तौसीफ ने की 2 रन बगैर नुकसान के। आरपीसीसी ने आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और जीजीसी हुमहामा की टीम को आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए। और की शुरुआत होती हुई सामने वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर खेलने पे मजबूर किया वहां पर बल्लेबाज को, और वही पास में लुढ़की बगैर किसी रन के। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 2 रन। दूसरे ओवर में 2 बगैर नुकसान के, और इस समय बीच मैदान में हिलाल और इम्तियाज लेफ्टी की जोड़ी बनी हुई है, और ऐसे में एक बहुत ही बेहतरीन और विश्वसनीय प्रदर्शन देना होगा। शुरुआती ओवर्स में एक आधारशिला, ठोस विश्वसनीय आधारशिला देनी होगी, जिसके चलते एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट हिलाल के लिए। इस बार गेंदों को खेलना चाहते थे, लेकिन संभवतः वहां पर सफलता नहीं मिली, और गेंद वही उनके शरीर पर लगने के बाद पास में लुढ़की बगैर किसी रन के। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ दूसरे ओवर में 2 रन बगैर नुकसान के। जीजीसी हुमहामा की टीम इस समय आमंत्रित तौर पर पहले बल्लेबाजी करती है, और प्रारंभिक जोड़ी इस समय इम्तियाज लेफ्टी और हिलाल के रूप में बीच मैदान में। मीर आइक भी हमारे साथ पड़े इम्तियाज के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। और डार नसीब इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। अगली गेंद को निकाला, लेकिन उस ओर खिलाड़ी है तैनात। खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन उतनी ही खूबसूरत क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन निश्चित तौर पे। कुछ रन बचाए अपने लिए और अपनी टीम के लिए, और 1 रन खाते हुए जोड़ता हुआ 3 दूसरे ओवर में बगैर नुकसान के जीजीसी हुमहामा का आरपीसीसी के विरुद्ध इस दूसरे निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले में। 3 on the board for the loss of no wicket. We are in over number 2. We'll have to wait and watch. On strike will be Imtiaz lefty, the man who possessed a lot of talent, Nazir, but today it's going to be a testing time for him. Given the circumstances and under certain circumstances, it is scorching out here at the sun, no doubt about that, and under the sweltering conditions at the moment. But as for the dimensions are concerned, pretty small, and it's easy to hit the ball out of the park. But so far bowlers have been really able to put pressure on the 2 batters, and they're not allowing them to break free. Next ball, that's a good ball, right hand money again, on target, and batsman circumspect, bat and pad close together, right behind the ball, offering the bat face, keeps it out towards the
widish mid-off for no run. It's 3 for the loss of no wicket. Thank you, Lon Yusuf. Walaikum salam, and Shiraz writes in, and Tasim Kuche and Tanveer Bhatt and others. Thank you. We are in over number 2. It's 3 for none. Next ball comes in, and oh, look at that one. Ball swinging away on that occasion. Are we in over number 3rd or 2nd over? And that was a beauty. That was flying over to the all corners on that occasion. After pitching of that air swing on that occasion, which was very much available to the naked eyes. Ball flying over the blade into the safe hands of wicketkeeper. Right direct ball, Ghazala, NTB, Wasim Ayub and Joel Esk and others. Thank you. Next ball, he wanted to pull that one early into the short and couldn't time it to perfection. It's a dot ball. It's 3 for none. We are in over number 2nd of the match. 3 रन बगैर नुकसान के, हालांकि 2 ओवर पूरे हो चुके हैं वहां पर संभवतः। और जिस प्रकार से इम्तियाज लेफ्टी लगातार प्रयास कर रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर निकलते हुए गेंद को खेलना चाहते हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। शुरुआती क्षण है और ऐसे में अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा वहां पर दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, निर्णायक कांटे की टक्कर का मुकाबला, सेमीफाइनल और खूबसूरत वातावरण क्रिकेट के अनुकूल। और ऐसे में इस मुकाबले में यदि आपको बने रहना है तो शुरुआती क्षणों में विकेट नहीं गंवाने होंगे। और दूसरी ओर गेंदबाजों की कोशिश होगी कि लगातार सटीक लाइन और के साथ अच्छी दिशा और लंबाई के साथ नियंत्रित गेंदबाजी करे, रनों की गति पे अंकुश लगाते हुए शुरुआती क्षणों में कुछ प्रभावशाली गेंदबाजी देखने को मिली है, तो कहीं न कहीं एक संघर्षपूर्ण मुकाबला आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। Yeah, you're right, and rightly mentioned by you, my dear colleague, in the com box, and absolutely right. They have to make sure that they bowl in the right areas. And it's the high time they have to keep things tight. So, since the completion of 2 overs and since ball 1, we have been able to witness that ball is being pitched in the right areas, and that is not given an inch away. And look at that one, flies off the top edge. And this is going to be the first boundary of the match. 1 bounce and into the 3rd man boundary for 4. And blessing in disguise. Ball blowing up in the air and goes down to the 3rd man boundary. The beauty of the track is that even a miss hit can carry the distance, and that's what we witnessed on that occasion. Had that been 3rd man in place, this could have been well curtains down, but with that boundary, score moves to 7. Qazi, Semikon, Bilal and Qazi Javed, Sonia and the and thank you for your love and support. Next ball coming up, it's 7 for none. Next ball, and oh, that has been sent in the air. We'll have to wait and watch. Chance for the fielder. Skalagi makes it. In the end, first blood is on, and can you believe all of a sudden got overcautious with that ugly swing of the blade, ball ballooning up in the air and straight down to the throat of the Skalak fielder. He does well. First blood is on, and Hilal has to walk back. We're in the back of 1. It's 7 for the loss of 1. A big breakthrough, and RPCC Wathoora at the moment, they are reaping the harvest, and that has really been impressive bowling up front. And Nazir, you have to give credit to the bowlers. Way they bowled, and they bowled in the right areas, not giving an inch away. And I think that is the reason that we're putting pressure on the batters. And Hilal got overcautious on that occasion. He was in desperate need of runs, and with that wild swing and with that ugly swing of the blade, ball ballooning up in the air down to the throat of Skalak fielder. He makes no mistake. Hold us on to the catch. First blood is drawn. It's 7 for the loss of 1 after being put into bat. GCC Humhama against RPCC Wathoora. Second semi-final of Future World T20 Cricket League 2022 coming your way from Gogo T20, and this is the big match underway here at the Centre. So I would definitely love to request my dear beloved viewers, Shaukat Ibn Ahmed Moore, one of my beloved viewers and brother, Paul Uyuban, and thank you for your love and support. You can join us in numbers. Believe me, this is a big match. High octane, heck of an encounter coming our beloved viewers' way. 7-1 विकेट के नुकसान पर प्रारंभिक जोड़ी को वहां पे साझेदारी को तोड़ा है। वहां पर कहना चाहिए गेंदबाज ने तौसीफ को मिलने वाली ये सफलता संभवतः, और जिस प्रकार से आवश्यकता थी उसी के अनुरूप बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला। लगातार ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के आसपास, जिसके चलते बल्लेबाज को वहां पर ललचाया, मजबूर किया स्ट्रोक्स देने के चक्कर में एक अतिरिक्त जोखिम बना स्ट्रोक, और गेंद वहां पर डीप स्क्वायर लेग पर पकड़े गए। तो इस प्रकार से पहले विकेट का पतन होता हुआ 7 रन जीजीसी हुमहामा की टीम आमंत्रित तौर पर पहले बल्लेबाजी करते हैं। इन परिस्थितियों में नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं इम्तियाज लेफ्टी के साथ, और किस प्रकार से वे यहां से बल्लेबाजी करेंगे ये देखना होगा। एक साझेदारी की आवश्यकता है, संयम आत्मविश्वास के साथ, और थोड़ा सा समय बिताना होगा विकेट पे दोनों बल्लेबाजों को। क्रीज के कोने से तिरछी रनअप के साथ अच्छी गेंद इस बार, हालांकि सीधे बल्ले से खेला जरूर। 1 रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और 1 रन के साथ ही स्ट्राइक मिलती हुई इम्तियाज लेफ्टी को 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 8। दूसरे ओवर में, संभवतः तीसरे ओवर में 8 रन
एक विकेट के नुकसान पर हिलाल आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। हालांकि अभी आज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, निराशाजनक प्रदर्शन रहा उनका। एक बड़ा स्ट्रोक का खेलने के चक्कर में वहां पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। 8 रन तीसरे ओवर में, एक विकेट के नुकसान पर इम्तियाज लेफ्टी है सामने। खूबसूरत वातावरण और अच्छी खासी धूप खिली हुई है और ऐसे में एक संघर्षपूर्ण सेमीफाइनल मुकाबला इसमें बीच मैदान में चलता हुआ। इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर। अंतिम समय में देखा बाला और छोड़ा विकेट कीपर के लिए। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 8 तीसरे ओवर में एक विकेट के नुकसान पर। यह है लेखा जोखा इस सेमीफाइनल मुकाबले का, जो कि आरपीसीसी वाथुरा और जीजीसी हुमामा के विरुद्ध बीच मैदान में चलता गोगो का यह खूबसूरत मैदान, जहां पे यह मुकाबला इस समय बीच मैदान में पहली पारी चलती है। निर्धारित 20 ओवर का कोटा और अब तक का तीसरे ओवर में 8 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पे। इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद और इस बार बाहरी किनारा और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। चौका यहां पर मिलता हुआ और चौके के साथ ही दोहरे अंकों में स्कोर पहुंचता हुआ 12 तीसरे ओवर में एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत, लेकिन संयम रखना होगा, आत्मविश्वास धैर्य रखना होगा और उसके बाद खराब गेंदों को सही नसीहत, अच्छी गेंदों का सम्मान रखना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है मनोहर भाई कि शुरुआती क्षणों में पावर प्ले इस समय जो है प्रगति पर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है विकेट के मजाज को परखना होगा, गेंदबाज को परखना होगा और उसके बाद स्ट्रोक्स लेने होंगे। Well, we'll have to wait and watch, and they have to make sure that they get their eyes in, then top for the shots. And we have seen in first overs runs were not coming, and we saw the back of one of the batters, Hilal, falling to that pressure on that occasion. He was unable to soak in that pressure at that instant. And next ball coming in and clipped away by Imtiaz lefty down towards the mid-wicket area. Both the batters coming back. No, they scamper through for a quick single, and with that, score moves to 13 for the loss of wicket. We are in over number 3. 3 done. It's 13 for the loss of 1. You are talking about that. You need to play the ball on merit, and you need to provide that sort of respect to the good deliveries, and you need to dispatch the bad balls to the boundary. But one more thing, that is the shorter boundaries on two portions of the ground, be it the straight hit and be it the long stop area. In these two areas, bowlers can't do very much. Outside edge found by the ball on that occasion, and ball ballooning up in the air and down to the third man in a jiffy, and that was a boundary. On other track, I can say that was a catch. It was within the boundaries, but that's for both the teams. But at the moment, it's 13 for the loss of a wicket. We are in over number 4. We'll have to wait and watch who's going to continue from that area. Let me take you through the RPCC Wathoora 11. Riaz Peer, Rais Kohli, Imtiaz Malla, Munir Jan, Saqib lefty, Junaid lefty, Samar the Ranger man, Amir Maqsood and Munir Paul, Tawseef and Mudassir Khan is playing in this squad, and these are the guys who made it to RPCC for this all-important semi-final. Going through golden group of constructions, GCC Humhama, they got Imtiaz lefty, they got Sheikh Hilal, they got Zaid lefty, they got Dr. Sajjad, they got Boy Mir, Tawseef Khan, Rope Mir, Hashim Bashir, Sahil Pathan and Rafiq Baba, the legend of all time, and Tanveer is in this side. पारी का चौथा ओवर लेकर के सामने वाले छोर से इस ओवर में अगली बार आमिर की गेंद, अच्छी गेंद इस बार अंतिम समय में उसको दिशा दे दी और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। पहले गेंद पर वहां पर स्वागत किया इम्तियाज लेफ्टी ने आमिर मकसूद का और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन 3.1 के बाद जीजीसी हुमहामा का स्कोर। हालांकि अभी आज टॉस हारने के बाद आमंत्रित किया गया था बल्लेबाजी के लिए और आज शुरुआत हिलाल और इम्तियाज लेफ्टी ने की थी, लेकिन हिलाल बहुत जल्द आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। निराशाजनक प्रदर्शन, लेकिन इम्तियाज लेफ्टी एक मंजे हुए बल्लेबाज और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे। आमिर मकसूद इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट। इम्तियाज लेफ्टी के लिए अच्छी गेंद एक बार फिर उसी दिशा में, लेकिन इस बार वहां पर शानदार क्षेत्र रक्षण, जितनी भी प्रशंसा की जाए उतने कम। निश्चित तौर पर यहां पे कुछ रन बचाए, साथी खिलाड़ियों ने वहां पर प्रशंसा की, क्यों न करें। एक खूबसूरत और बेहतरीन क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन समय बीच मैदान में आरपीसीसी द्वारा। 17 रन चौथे ओवर में एक विकेट के नुकसान पर और समय बीच मैदान में इम्तियाज लेफ्टी और उनके साथ दूसरे बल्लेबाज जो के बने हुए हैं बारी बरकम शरीर के मालिक नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे, लेकिन जहां से एक साझेदारी की आवश्यकता है, संयम आत्मविश्वास के साथ खेलना होगा। बड़ा मुकाबला सेमीफाइनल, आज के इस दिन का यह अंतिम मुकाबला कुल मिलाकर दूसरा सेमीफाइनल इस बार लेग स्टंप पर, लेकिन उस ओवर खिलाड़ियों ने गेंद को फील्ड किया। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ चौथे ओवर में 17 रन एक विकेट के नुकसान पर जीजीसी हुमहामा। फ्यूचर वर्ल्ड T20 क्रिकेट प्रतियोगिता
गोगो वर्ष 2022 के अंतर्गत ये दूसरा सेमीफाइनल जो कि आरपीसीसी वाथुरा और जीजीसी हुमामा के विरुद्ध चलता हुआ। हुमामा जो कि टॉस हारने के बाद आमंत्रित तौर पर बल्लेबाजी करते हैं। इम्तियाज लेफ्टी के लिए उस बार थोड़ी सी जगह मिली, खेला वहां पर, हालांकि रियाज पीर ने गेंद की गति को तो कम जरूर किया लेकिन रन लेने से नहीं रोक पाए वहां पर बल्लेबाज को। इम्तियाज लेफ्टी अच्छी दौड़ विकेट के बीच में बेहतरीन तालमेल का परिचय देते हैं दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोड़ बदल लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन चौथे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर। बट मंजूर, लॉन फाजिल और अरसलान उल हक भी हमारे साथ बने हुए हैं। फैकर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जीके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण आप तक का पहुंचता है इस खूबसूरत गोगो के मैदान से। और प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर एमएचएम और कोफैन स्टेशन रियल एस्टेट पांपोर फैशन फिस्ता एंथम स्पोर्ट्स इंडिया। पारी का चौथा ओवर लेकर के आमिर मकसूद और उनके सामने है बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को जबरदस्त प्रहार करने की कोशिश लेकिन पूरी तरह से स्ट्रोक पे ताकत नहीं दे पाए। निचले सिरे पे लगने के बाद उस और खिलाड़ी से तैनात उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 17। चौथे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर जीजीसी हुमहामा का। फिदा अहमद भी हमारे साथ बने हुए हैं बट मंजूर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बीच बिहाड़ा कोचिंग सेंटर से। और स्वागत करना चाहेंगे सभी व्यूअर्स का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। इसी बीच अच्छी गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक, कोई मौका नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 22। चौथे ओवर में 22 रन समाप्ति, ओवर पूरा हो चुका है वहां पर। 4 ओवर की समाप्ति, 22 रन जीजीसी हुमहामा का। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले मात्र बल्लेबाज हिलाल जो कि ज्यादा कुछ कर नहीं पाए लेकिन इस समय बीच मैदान में आदिल, इम्तियाज लेफ्टी और उनके साथ दूसरे बल्लेबाज। 4 ओवर की समाप्ति, 22 रन। मंसूर मलिक, गुलाम महिउद्दीन मलिक, जावेद नबी और आदिल भी हमारे साथ बने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ और मजा लीजिए इस खूबसूरत निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले का। Yeah, absolutely. Imtiaz Lefty is out in the middle, and we love to thank our proud sponsors, Gogo Station and Them Sports India Fashion Fiesta, Real Estate Pampur, and a Shining Star Pampur, MHM Multi Fashion Branded Store, and Javed Wani writes in back to sports time. Always a Trisha Ward despite the standout match. Thank you for allow Javed Wani. It's you allow. I'm really thankful to you. It's really something special coming from your side. We're really indebted to your love and support. What a way to welcome us and back us. Wani Jangir, Adil, Shabir and Shaw and others, thank you on that occasion. Oh, that was a good ball. And that rise almost up to the abdominal cavity, but the batsman managed to skip that one down and out towards the Silia cover for Neuran. Adil is watching from Qatar, thank you. But in the meantime, Musabir Miraj writes in, Imtiaz Lefty and Atosif Aka Taskan, they're out in the middle. We'll have to wait and watch. Next ball, Pacer comes in and he will be bowling to Imtiaz Lefty. Next ball to Lefty and driven handsomely back to the bowler. Bowler's backfire, but what a feeling in the follow through by bowler. What could have been a boundary and limit is this going down to nil. It's a dot ball. Zahood, thank you. Adil and Shahnawaz Yusuf, thank you. Next ball coming up. 1, 2, 3, 4, 5, 6 men on the off and 3 on the on with this field. 60 field. Bowler comes in with the next ball too. Oh, that's a beauty. That is a gorgeous shot. One bounce and into the long on boundary for 4. Gorgeous one. Brilliantly done Nazir on that occasion by Imtiaz Lefty. खूबसूरत स्ट्रोक जैसे ही गेंद उनके रडार में मिली और कलाइयों के दम पे बेहतरीन स्ट्रोक गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 जा पहुंचा है। 26। 1 विकेट के नुकसान पर इम्तियाज लेफ्टी सामना करने के लिए तैयार तौसीफ का। पिछली गेंद पर एक चौका जड़ने के बाद नए ऊर्जा और उत्साह के साथ इस बार अच्छी गेंद खेला। 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद जाती हुई सीमा रेखा से बाहर निकल गई। एक और चौका इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से निकलता हुआ। खूबसूरत दर्शनीय स्ट्रोक, तेज तरार शुरुआत और लगातार इस समय चौकों की बरसात होती है क्योंकि शुरुआती क्षण है। पावर प्ले का बेहतरीन प्रयोग करना चाहते हैं इम्तियाज लेफ्टी और उनके साथ तौसीफ। कुल मिलाकर इस समय 30 जा पहुंचा है कुल योग अगर जीजीसी हुमहामा की टीम की बात करें। हालांकि वे आज टॉस हारने के बाद आमंत्रित तौर पर इस बीच मैदान में बल्लेबाजी करते इस निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले में जो कि फ्यूचर वर्ल्ड T20 क्रिकेट प्रतियोगिता गोगो वर्ष 2022 के अंतर्गत शानदार और बेहतरीन आयोजन किया इस प्रतियोगिता का। अगर इस की चर्चा हम जरा देर बाद जरूर करेंगे। तो इस ओवर में अगली बार इम्तियाज लेफ्टी के लिए एक बार फिर ऑफिस नंबर जगह दी, मोड़ा उसको 2 खिलाड़ियों के बीच में से एक और चौका, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई
क्या बेहतरीन प्रदर्शन, 3 गेंदों से 3 चौके इस समय लगते हुए इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से। खूबसूरत वातावरण और उत्साहित इस समय सभी समर्थक और दीवाने क्रिकेट के जो कि इस समय समर्थन देने आए हैं जीजीसी हुमामा की टीम को। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34। ये पारी का कुल मिलाकर संभवतः 5 ओवर प्रगति पर है। 34 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पे। इम्तियाज लेफ्टी के लिए ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप पर अपने आप को संतुलित करते हुए, हालांकि दिशा जरूर दी थी गेंद को, लेकिन उस और खिलाड़ी थे तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका। 34 ओवर पूरा हुआ, तो इस प्रकार से 5 ओवर की समाप्ति के बाद 34 1 विकेट के नुकसान पर इम्तियाज लेफ्टी से नाबाद बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन, हालांकि शुरुआती क्षण है इस मुकाबले के। An excellent batsmanship from Imtiaz Lefty. 3 boundaries, hat-trick of fours, and he's playing the ball on merit. And this is what can happen. And 0 after you maintain that discipline and you show those guts out in the middle, and you show patience and being patient out in the middle takes a lot of character. It takes tremendous character to play. But look at Imtiaz Lefty. He was waiting for and on that occasion he was able to convert those chances into boundaries. And 3 balls were in the slot for Imtiaz Lefty. And on all the 3 occasions he was able to put them away in style. And by putting those 3 balls away to the boundary in style, score moves to 34 for the loss of a wicket. And this partnership is now growing quite a bit. And they will carry on, and they will love to carry on with the same pace. And Taskan is out in the middle to sport and to play the second fiddle, and alongside Imtiaz Lefty. Thank you Shaukat Butt and others. Next ball, oh, that's gone. Oh, what a shot on that occasion, and that's gone all the way. We'll have to wait and watch, and umpire now signals it's a boundary. But look at that one, Sagar Naik Ali, thank you. Look at Taskan on that occasion as he slapped to that one, never extra cover. 1 bounce into the boundary for 4. 38 for the loss of 1. 34 38 क्षमा कीजिएगा 38 रन 6 ओवर में। और यहाँ पर स्वागत किया ताश खान ने। शौकत अहमद बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और चाहते थे। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर ताश खान ने, विकेट कीपर भी चौके हो गए, निकल गई सीमा रेखा से बाहर। बाई के रूप में चौका मिलता हुआ और स्कोर उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ गतिशीलता देते हुए स्कोर बोर्ड में जा पहुंचा है। 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर ताश खान और इम्तियाज लेफ्टी की जोड़ी इस समय बीच मैदान में। खूबसूरत वातावरण और बेहतरीन आयोजन इस प्रतियोगिता का। और इस समय सामने वाले छोर से एक बार फिर राइट आर्म ये गेंद, और इस बार ताश खान के लिए वहां पर बैकफुट पर जाकर के सीधे बल्ले से स्ट्रोक जरूर लिया, लेकिन उस और खिलाड़ी थे समर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 42 रन। इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद, फिर वापस स्टंप पर खेला जरूर। इस ओवर खिलाड़ी है, हालांकि रन लेने की कोशिश वहां पर स्टंप से सीधा थ्रो, लेकिन सुरक्षित क्रीज पे, और अब जाके मिसफील्ड का नतीजा 1 रन और खाते में जुड़ता। 43 छठे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर फ्यूचर वर्ल्ड T20 क्रिकेट लीग वर्ष 2022 गोगो, और एक सफल आयोजन इस प्रतियोगिता का जो कि गोगो T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 को ऑर्गेनाइज किया। जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है गोगो क्रिकेट एसोसिएशन RPCC वाथुरा और गोल्डन ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शंस के विरुद्ध जो मुकाबला होना है। और चीफ ऑर्गेनाइजर्स की अगर हम बात करें इस गेंद के बाद, इस ओवर में अगली बार ये गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर जगह मिली, उसको खेला जरूर। 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर। उस ओर खिलाड़ी जब तक उसको फील्ड किया जाता तब तक पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का। 45 सागर नायक अली और साकिब वानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आयशा खान, साकिब वानी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सूचना हम तक पहुंच चुकी है। अपना प्यार विचार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ और मजा लीजिए इस खूबसूरत सेमीफाइनल मुकाबले का जो कि RPCC और GGC हुमामा के चलता है। इस बार फिर ऑफ स्टंप पर जगह मिली, लेकिन सीधे वहां पर रियाज पीर को बीत नहीं पाए इम्तियाज लेफ्टी। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। ओवर पूरा हुआ 6 ओवर की समाप्ति के बाद 45 1 विकेट के नुकसान पे। और अगर इस प्रतियोगिता की बात करें मनोहर भाई, सफल आयोजन इस प्रतियोगिता का, और जो अधिकारी हैं चीफ ऑर्गेनाइजर हैं तारिक अहमद, और उसके बाद ओवैस बशीर, शाहिद अमीन, फिरदौस अहमद और इरशाद अहमद लोन, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन और सफल आयोजन किया है इस प्रतियोगिता का जो कि फ्यूचर वर्ल्ड T20 क्रिकेट प्रतियोगिता गोगो वर्ष 2022 के अंतर्गत। और आज ये दूसरा सेमीफाइनल, और जहां से विजयी टीम जो है फाइनल में प्रवेश करेगी, और संभवतः रविवार को इसका एक बड़ा निर्णायक फाइनल मुकाबला होना है। और अगर स्पॉन्सर्स की बात करें इस प्रतियोगिता की तो उस्मान स्पोर्ट्स नौगाम, US ब्रदर्स, और उसके बाद
रेनबो टूर एंड ट्रेवल्स और ए स्क्वायर लसजन। तो ये है इस प्रतियोगिता को आयोजन, इसका सफल आयोजन, और जिसके चलते इस समय बीच मैदान में अंतिम चरण में है। हालांकि ये दूसरा सेमीफाइनल आरपीसीसी और जीजीसी हुमामा के विरुद्ध इस समय गोगो के इस खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान में चलता है। स्थिति यह है 6 ओवर पूरे, और जीजीसी टॉस हारने के बाद आमंत्रित तौर पर बल्लेबाजी करते हैं 45, 1 विकेट के नुकसान पर। मुसव्वर महराज हमारे पास बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार विचार देने के लिए, और इसी प्रकार से जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़ जाइए, मजा लीजिए इस खूबसूरत मुकाबले का। प्रायोजक एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, शाइनिंग स्टार, एमएचएम, आर्को फैन स्टेशन, रियल एस्टेट पंप और फैशन फीस्टा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्पॉन्सर का अपना प्यार समर्थन सहयोग देने के लिए। खूबसूरत वातावरण और क्रिकेट के अनुकूल नए ओवर की शुरुआत होते हुए पहली गेंद लेकर के इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर के उसको हल्के हाथों से सम्मानजनक रूप से खेला बगैर किसी रन के। 6.1 ओवर की गेंदबाजी, 45, 1 विकेट के नुकसान पर जीजीसी हुमामा। 45 for the loss of a wicket. We are in over number 7. X ball to Tascan, and what a shot! Will this be cut off? A beautiful stop. What could have been a boundary? Brilliantly done on that occasion, and nicely fielded on that occasion. What could have been a boundary? And limits the scoring down to just a paltry run on that occasion. And Azira again, Phil is showing that positive intent on that occasion. What could have been a boundary? Limits the scoring down to a single run. That means they are really trying to back the bowlers up at the moment, and which is the high time. If they can support the bowlers like this, their bowlers can really produce some beauties from the golden hands. Next ball coming up to Imtiaz Lefty. Oh, that's in the air. Phil underneath the ball, and Imtiaz Lefty has to walk back. Can you believe Nasir against the run of play, and the big man, big fish caught in the net, and he can't leave like Imtiaz Lefty. Little swivel on its axis, ball up the top edge, up the spice, and carries down to the Scalac fielder. Sam man out there at the boundary, the man who holds you the first catch of the match, and a second ball goes to him, and he's not going to do anything wrong today. He's going to do everything perfectly, and look at that one. Wicket number 2 at the score of 47, and we have seen the back of the danger man Imtiaz Lefty. He's walking back to the pavilion, and it's the high time. It's the time to celebrate. But Mansoor writes in excellence coaching centre Bijbara. Thank you for your love and support. But in the May, Ashraf Lefty joins us. He's watching from Sir Hamdan and Banag. Thank you, Ashraf Lefty. No, it is in Sir Hamdan. It's Gogo but gone. Thank you, Ashraf Lefty, for your love. And in the meantime, we've seen the back of second one Nazir, and this is the beauty of bowling in the right areas, and this is the beauty menu. Where from Gogo but gone this time round. But Nazir, this is the beauty when your fielders are backing up the bowlers, when you bowl in the right areas, and this is really gonna pay the rich dividends. At the moment we have seen that, and it paying rich dividends on that occasion. Bowler getting rid of the danger man Imtiaz Lefty, who was looking threatening at the moment. He got his eyes in. Now he was just trying to milk the bowlers, and he was trying to maneuver the gaps, and he was doing that quite brilliantly, but all of a sudden got overcautious thanks to that delivery and the fielder there at backwards Scalac boundary. We're seeing the back of second one Nazir. 47 पे 2 विकेट के नुकसान पर, और इम्तियाज लेफ्टी जो कि काफी खतरनाक हो सकते थे, लेकिन उनका विकेट मिलने के बाद एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आरपीसीसी के गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। 1 रन वहां पर पूरा क्या खाता खोला, और 1 रन के साथ ही कुल योग बढ़ता हुआ 48, 2 विकेट के नुकसान पर यह पारी का 7वां प्रगति पर, और गेंदबाजी वहां पर संभवतः तौसीफ के पास। और इस समय बीच मैदान में ताश खान सामना करने के लिए तैयार, बारी बरखम शरीर के मालिक का, और 28-29 डिग्री का तापमान, पसीने से तरबतर, और सामना करने के लिए तैयार। इस बार जबरदस्त प्रहार, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, गेंद स्टेडियम से जा बाहर लगी है 6 रनों के लिए। ताश खान के बल्ले से निकलता हुआ यह जन्नतेदार स्ट्रोक, और दर्शकों के उत्साह का ठिकाना नहीं है। क्या बेहतरीन लाजवाब पारी खेलते हुए छक्के के साथ ही 50 रन पूरे होते हुए 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर मात्र 7वें ओवर में। That's gone into the orchards, and we lost the ball. It will take us some time to bring the ball back, and organisers have to work hard, but that was a wonderful shot, and this is Tascan for you, and there's a danger man out in the middle. My colleague mentioned is Wani Harris wants to know. Tarek Makno writes in, thank you sir for your love and support, and you're always there for all of us. Thank you. We're really thankful to you again. Tarek Makno is watching, thank you. But in the meantime, somebody wants to know the playing 11. Let me take you through again. Imtiaz Lefty playing for Golden Group of Constructions.
followed by Sheikh Hilal, Zahoor lefty, Zaid lefty, Dr. Sajjad, Boy Mir, Tausif Khan, Roop Mir, Hashim Bashir. Next ball coming up on middle and leg, clipped away by Taskan. Sensible batting out in the middle, and this is sensible batting from Taskan. Next ball worked away gently, beautifully, and scamper through for a quick single, brings the new man back on strike. And Tausif Khan, Rukmir, Hashim Bashir, Sahil Pathan and Rafiq Baba and Tanveer. This is the playing 11 of GCC Humhama. Now let me take you through the other side of RPCC Wathoora. They got Riyaz Peer, Rais Kori, Imtiaz Malla, Munir Jan, Saqib lefty, Junaid lefty, Samar, Amir Maqsood, Munir Paul, Tausif and Mudassir Khan. Nazir, what was that hit? It was absolutely middle and nailed all the way along off for 6. It was a huge, high, long, wide and handsome for 6. बेहतरीन पारी इस समय खेलते हुए तौसीफ खान, हालांकि लोकप्रिय है ताश खान के नाम से और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इस समय बीच मैदान में। हालांकि अभी भी काफी लंबा सफर तय कर रहे हैं, बड़ा मुकाबला है, निर्णायक मुकाबला, और ऐसे में उनका विकेट पे बने रहना काफी महत्वपूर्ण रहेगा उनके लिए और उनकी टीम के लिए। और ऐसे में वे खुद ब खुद जानते हैं कि किस प्रकार से विकेट पे बने रहना होगा, कितना महत्वपूर्ण रहा होगा उनका विकेट पे बने रहना अंतिम समय में, और अंतिम समय तक उनको टिकना होगा। क्या इसमें वो सक्षम हो पाते हैं अथवा नहीं, बट अयूब हमारे साथ बने हुए हैं अशरफ लेफ्टी के साथ। और डार फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। कहीं जाइएगा नहीं, एक खूबसूरत और ऐतिहासिक मुकाबला इस समय बीच मैदान में। अगर बात करें इस प्रतियोगिता की फ्यूचर वर्ल्ड टी20 क्रिकेट लीग गोगो वर्ष 2022 का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आरपीसीसी और जीजीसी हुमामा के विरुद्ध चलता हुआ। अगली गेंद लेग स्टंप पर हल्के से उसको प्लेस किया, हालांकि जब तक उसको फील्ड किया जाता स्वाभाविक तौर पर वहां पे समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का, 1 रन से ही संतुष्ट, और कुल योग जा पहुंचा 55 रन 8वें ओवर में। 2 विकेट के नुकसान पर हिलाल और इम्तियाज लेफ्टी, ये 2 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। राजीव ठाकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं, सोहेल शब्बीर और शाहिद निसार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए। इस ओवर में अगली बार उनकी ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद लेग स्टंप पर आती हुई सीधे बल्ले से अंतिम समय में सम्मानजनक रूप से खेला। हालांकि रन लेना चाहते थे वहां पर, लेकिन जैसे ही देखा फील्डर उस ओर जो पट्टा मारते हुए सुरक्षित अपने कदम वापस क्रीज में खींचे। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 55 रन 8वें ओवर में। 2 विकेट के नुकसान पे सामना करने के लिए तैयार। इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद, इस बार हल्का सा उछाल मिलता हुआ वहां पर गेंद को, लेकिन अंतिम समय में हालांकि उसको खेला, 1 रन पूरा कर रहे हैं, दूसरे रन के लिए आना चाहते थे, लेकिन वहां पर तौसीफ खान ने मना किया और इस समय वहां पर 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 56 8वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर सोहेल शब्बीर और सज्जाद अहमद भी हमारे साथ, खान अल्ताफ के साथ इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शाहिद सज्जाद भी इस मुकाबले में हमारे साथ बने हुए हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसार तक पहुंचता हुआ। इसी बीच ये गेंद का मौका इस्तेमाल, कोई मौका नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए। Now learning the lesson and still bowling in that area. Half trackers to this man, Taskan. You can understand the name tells the entire story of this man, and he goes on to the front foot and flat bat at 6. Back past the ball for 6, and that was a wonderful hit again, and slapped back past the ball for 6. Beautiful, adorable hit of the front foot on that occasion. Now score is in excess of 60 for the loss of 2 over number 8 in progress, and Imtiaz Malla is unable to bowl in the right areas. He is providing him too much width and is asking the batsman to go hard at it. So is Taskan doing at the moment. Oh, that's a beauty. Low battle line on the occasion, and he was just on the receiving end and bouncing back in style and bowled that beauty. The ball rise almost up to the abdominal cavity, and batsman Taskan manages to keep that one down towards the ciliary mid-off and a run. Oh, look at that one, worked away. And is he going to pick a run? No, he does, and it's a dot ball. And bowler himself does well, coming across and fills that one at silly mid-on area. Khan Altaf, thank you for your love. Bari Amir and Musabir Miraj, Umar Manzoor and Khan Sabur and Bari Amir and others, thank you. You can join us in numbers, and you can also contribute to JK Sports Time by sending in the digital token and coupon of love to JK Sports Time. And we really love all the beloved viewers of JK Sports Time. It's because of you viewers
we are able to provide you the live action time and again. You are making our dreams come true, and you're making our day time and again. We're really thankful to you again, and we definitely love to welcome Educate Hilal, and he's been the sensation of umpiring in the valley. Then followed by one of my beloved teachers, Gabar Rahman, and Gulzar Saab behind WPL, the man behind that event. Oh, beautifully done, flicked away, chase for the fielder. Oh, sloppy field there by the fielder. What could have been a single, and he conceded the boundary, and you can see that whistling from the crowd, and they're sledging. And Phil can't do very much. He has to soak in that. He has to bear that. That was a wonderful shot, flicked away, and that earned him a boundary. And we were talking about the few of the names of the valley who are really providing this sport in a day in, day out. Gulzar Saab behind WPL, Mir Hassan behind ACG Andargam, and Tarek Maknu behind MKT digs that one out, directs it down towards the long on, and both the batters will fetch another single. Sensible batting again, fetching that boundary, and next ball knocked that one straight down the ground for a single. There is addition to the tally. Nazir. 65 रन हो चुका है स्कोर 9वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर। इस समय तास खान सामना करने के लिए तैयार। तौसीफ खान एक मंजे हुए बल्लेबाज, काफी अनुभव है उनके पास, और उस अनुभव का पूरा प्रयोग करते हुए इस मुकाबले में, और जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है बल्लेबाजी करना। इस बार अच्छी गेंद आवश्यकता के गलियारे में हल्के हाथों के साथ उसको खेला, वहां पर मिस फील्ड का नतीजा 1 रन और खाते में जुड़ता है। 66 हो गया है कुल योग। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से गोगो बडगाम का ये खूबसूरत मैदान, जहां से सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ, और सभी व्यूअर से निवेदन होगा कि लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि अन्य लोग हमारे साथ जुड़कर इस खूबसूरत सेमीफाइनल मुकाबले का आनंद ले सके। इस ओवर में अगली बार ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर, मौका मिला, ऊंचा लंबा स्टॉक गेंद स्टेडियम से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 पहुंचा है 9वें ओवर में मात्र 2 विकेट के नुकसान पर। तेज तरार पारियां, और अब धीरे धीरे से दोनों बल्लेबाजों की निगाहें जम चुके हैं, और ऐसे में बेहतरीन तरीके से गेंद को मिडल करते हुए सीमा रेखा से बाहर पहुंचाते हुए। Bad line again, sprays down the leg side, string down the leg, allowing the batsman break free, glanced away, all the way backwards, collect for 6, and this over has been really expensive from this man. He is bowling Weber deliveries, again spring down the leg side and asking the batsman to just work that one gently. He does that to perfection, and that was a great shot from his play. Next ball, and outside the off stump, it was also again asking for trouble, but on that occasion batsman unable to explode, and he was unable to execute his plans to perfection. It's a dot ball, but luckily bowler gets away with it on that again. Next ball coming in. Oh, that's a good ball, and coming into the batsman, and batsman worked away this one straight towards the bowler, off his ricochet down to the mid-off. Imtiaz Mallah does the rest, but both the batters fetching another single. Musawir Miraj is this batsman, Boymir, and Wage Amir, Ayan Altaf, and Khurshid Ahmad, Musawir Miraj, and Mir Sabur. Thank you Mir Sabur for your love and support, and Wasim Khalik and Hanan Baba. Thank you again. Nazir, semi-final number 2 coming to you, coming to our beloved viewers way in an exclusive manner at the moment, and it's a Future World T20 Cricket Tournament, Gogo Badgam. But this match is really of high quality. Thank you Asadullah for your love, and he's always watching us and he's always backing us. Thank you Asadullah once again from Didi Koot Kufwara, and then followed by Malik, Gulzar and others. Well, Nazir, a big match. Our beloved viewers are hereby requested, if you lost this match, you will lose something big in your life, and catch the match, catch the action. And Ashik Rashid, thank you for your love. This is where is the match. It's Gogo Badgam hosting a second semi-final match of Future World T20 Cricket Tournament, Gogo Badgam, and you can be the part of this wonderful game of cricket. Big names of the valley are playing in this very match, especially from both the teams, and you can tune in to the live broadcast and you can catch those big hits. Taskan is sending the ball out of the park, and he's sending the ball with tremendous sense of urgency to the boundary, and fresh over begins the very first ball from Riyaz Peer. Oh, he's being welcomed with a huge gigantic hit, over long off for 6. Imtiaz Rathil, look at that. That's gone all the way, country mile. What a hit, over pitching, flighty trajectory. And he says, I'm not gonna leave these balls, I'm gonna pack it to perfection, and that's a 6. Musawir Miraj and Dar
Sansdar and Umarul Islam, but that was absolute wonderful shot. And Khurshid Paul writes in something. Thank you for Allah and sport. Look at that, and Nazir. Half of that is gone. I used it a country mile to me, and it is absolutely a country mile. You can see the distance, and it is still taking us time to bring the ball back. There's so many ball boys in those orchards, and we're in the Carivas area of Gogo Badgam, and this is totally Carivas area, and this stadium has been covered and furnished by Sports Council. And oh, that's in the air, but well, no man is close in on that one, and on that occasion the ball ballooning up in the air before the field can come in from long on area. The two batters had time in the ball to scamper through for a quick single, and they need close in on fielders, at least one or two inside the 30-yard. And Umar Manzoor writes in, who and what's this, Arif Mir and Ilyas Hussain, thank you for allow. And what's going on, Umar Manzoor, what are you talking about? He switches to on the way, next ball coming up, and as he is all smiling, next ball, and it's a half track, it's in the air. Has that gone all the way? We'll have to wait and watch. Field makes it. We'll have to wait and watch. We'll have to wait and watch. Is this a catch? And Amir Maqsood, the fielder. We'll have to wait and watch. Is it Tascan to depart? It will take us some time, but he believes that he has plucked that one from thin air. Does what a take and what a goal, and Tascan has to walk back. A big setback received by GCC Humhama. Can you believe this? It all of a sudden, and but that portion, the boundary is a lot more bigger on that portion. It is still a large boundary on that portion, and ball ballooning up in the air, and Amir Maqsood as well holding on to that one. It could have been a 6, and he denied him on that occasion. We're in the back of third one, and there comes Zaid Lepti, walks into the middle. Zurba, thank you. Muzaffar Ahmad and Umar Manzoor and Ilyas and Tantri Mustafa, thank you. He's watching from Yarulang Gate. But look at that one, Nazir. All of a sudden again as they're on a play, batsman losing a patience, not passion, it's patience, and he has to show those patience, and batsmen need to be patient out there in the middle. Having a patient means you can really go long way in your life, and cricket is all about holding the nerve and just trying to knock the ball in the gaps and playing the ball on merit, and keep playing the ball on either side of the track into those pockets on either side which are available. And at the moment you can see that, shit man, what you have done, tossed by you. And Manzoor writes in, and that wasn't a wicket taking one. You're absolutely right, you nailed it to perfection. It was a half tracker, and for me I thought that's gone all the way, but it wasn't the case. Straight down to the throat of the field as well. We've seen the back of only one camera being used, and Surinder Khadial writes in, and Wage Amir, thank you everyone for Allah and sport. Wage, you may understand at your level best what are you talking today, and Tahu, Riaz and others, thank you. धन्यवाद। इस प्रकार से हालांकि 30 विकेट का पतन हो चुका है, और वो भी एक बहुत बड़ी मछली को फंसा लिया है। तौसीफ खान, ताश खान के नाम से लोकप्रिय, और वे आउट होकर पवेलियन लौट के, हालांकि खराब गेंद थी, जबरदस्त प्रहार जरूर किया था, स्ट्रोक पे ताकत नहीं दे पाए उस, और जो सीमा रेखा काफी लंबी है, और ऐसे में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। रियाज पीर ने थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली होगी। इस ओवर में हल्के से प्लेस करते 1 रन पूरा किया वहां पर, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता। लगातार प्रयास हो रहे हैं, और एक बार फिर सभी अपने व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन, स्वागत, धन्यवाद करना चाहेंगे। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से जुड़ जाइए। खूबसूरत आकर्षक वातावरण, और ऐसे में दूसरा सेमीफाइनल इस फ्यूचर वर्ल्ड टी20 क्रिकेट लीग गोगो वर्ष 2022 का दूसरे सत्र का ये दूसरा सेमीफाइनल बीच मैदान में। इस ओवर में अगली बार रियाज फिर किए गए, तो बार लेके स्टंप पर अपने आप को संतुलित करते हुए निकाला, लेकिन उस ओवर खिलाड़ी तैनात उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जब तक वापस गेंद विकेट कीपर के हाथ में आती, पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। 1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता सबब 78। 3 विकेट के नुकसान पर हिलाल, इम्तियाज लेफ्टी और तौसीफ खान, ये 3 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं जीजीसी हुमामा द्वारा। और वहीं पे अगर बात करें आरपीसीसी वाथुरा की, तो इस समय कहीं ना कहीं एक शुरुआती क्षणों में हालांकि बेहतरीन बल्लेबाजी हुई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वापसी उस ओवर खेल दिया है, लेकिन खिलाड़ी है तैनात ने गेंद को फील्ड किया। लगातार प्रयास हो रहे दोनों छोर से बल्लेबाजों द्वारा, और 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ इस 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन। ओवर पूरा समाप्त, 9 ओवर समाप्त, 78 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
बहुत ही बेहतरीन मुकाबला इस समय बीच मैदान में, अच्छा वातावरण, हल्की हवा चलती हुई और ये खूबसूरत मैदान। अगर गोगो बड़गाम की बात की जाए, दूसरा सत्र इस फ्यूचर वर्ल्ड T20 क्रिकेट लीग गोगो बड़गाम का, और ऐसे में ये दूसरा सेमीफाइनल अंतिम चरण में है। ये प्रतियोगिता शानदार और सफल आयोजन इस प्रतियोगिता का। अगर हम बात करें इस प्रतियोगिता की, गोगो T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट जो 2022 वर्ष का चल रहा है इस समय, सेमीफाइनल मुकाबला, और गोगो क्रिकेट एसोसिएशन RPCC वाथोरा के और गोल्डन ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी कि GGC हुमामा के विरुद्ध ये मुकाबला चलता हुआ, और चीफ ऑर्गेनाइजर जो है इस प्रतियोगिता के काफी कुछ उनको भी जाता है जिस प्रकार से ये संकल्प लिया है, एक बेहतरीन सफल प्रतियोगिता का आयोजन किया है। चीफ ऑर्गेनाइजर तारक अहमद, ओवैस बशीर, शाहिद अमीन, फिरदौस अहमद, इरशाद अहमद, और अगर वहीं पे स्पॉन्सर्स की बात करें तो इस प्रतियोगिता को स्पॉन्सर किया है उस्मान स्पोर्ट्स नौगाम, US ब्रदर्स, रेनबो टूर एंड ट्रेवल्स और ए स्क्वायर लसजन ने। तो ये है लेखा जोखा इस प्रतियोगिता का। इस समय स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया है और हमारे पास थोड़ा सा समय है अपने इन चहीते व्यूअर्स से बातचीत करने का। सुरेंद्र खदियाल हमारे साथ बने हैं, बहुत कमेंटेटर सर, गुड धन्यवाद सभी व्यूअर्स का, और सुरेंद्र भाई आपका भी। ताहूर रियाज भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए सईद असदुल्लाह के साथ और बासित जिगर निसार रातर के साथ धन्यवाद। और लाइक और शेयर करना ना भूलें, जुड़ जाइए हमारे साथ क्योंकि एक आकर्षक और रोमांचक स्थिति है इस मुकाबले में। हालांकि पहला सत्र चलता हुआ इस मुकाबले का, पहली पारी चलती हुई और कुल मिलाकर 10 ओवर का खेल हुआ है संभवतः, और अभी तक का 78 रन बने हैं। 3 विकेट के नुकसान पर RPCC वाथोरा की टीम ने आज सुबह इस सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए GGC हुमामा की टीम को, और इस समय उनका कुल योग 3 विकेट के नुकसान पर 78 रन और 10 ओवर पूरे हो चुके हैं। आदिल भट्ट भी हमारे साथ, शेख फयाज के साथ जावेद भट्ट और सज्जाद अहमद भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, जान समैया के साथ वगे आमिर और आदिल भट्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय स्थिति यह है कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया है, खेल रोका गया है, और ऐसे में अगर स्थिति की बात करें तो कुल मिलाकर 78 रन बना लिए हैं 10वें ओवर में। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 78, 3 विकेट के नुकसान पर बीच मैदान में इस समय संभवतः आदिल लेफ्टी और उनके साथ जाहिद लेफ्टी, क्षमा कीजिएगा, जाहिद लेफ्टी, और उनके साथ दूसरे बल्लेबाज संभवतः बॉयमीर बीच मैदान में बने हुए हैं। तो काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे, क्योंकि एक आकर्षक मुकाबला बीच मैदान में और अंत तक दोनों बल्लेबाजों को खेलना होगा। काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य ये देखते हुए अगर RPCC टीम की बात करें तो उनके पास एक दिग्गज बल्लेबाजी है, बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं, तो कहीं ना कहीं 150-160 का लक्ष्य देना होगा। और दूसरी ओर अगर बात करें इस मैदान की, हालांकि जो बाउंड्रीज है वो काफी छोटी है इस छोर से भी, और कहीं ना कहीं ये ध्यान में भी होगा, और एक बड़ा लक्ष्य यहां पर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह होगी यदि विकेट को सुरक्षित रखें। सैयद असदुल्ला, जहूर भट्ट और डार मुदस्सिर भी इस मुकाबले का आनंद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जावेद अहमद के साथ इसहाकुल इस्लाम और वानी जाहिद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। जुड़ जाइए और लाइक और शेयर करना ना भूले ताकि अन्य लोग हमारे साथ जुड़कर इस मुकाबले का आनंद ले सकें। JK स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से गोगो बड़गाम से सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ फ्यूचर वर्ल्ड T20 क्रिकेट प्रतियोगिता वर्ष 2022 के अंतर्गत, और प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, MHM और को फेडरेशन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ UPVC डोर्स एंड विंडोज, रियल एस्टेट पांपोर, फैशन फिस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया। जहांगीर हिलाल भी हमारे साथ बने हुए हैं उमर फारूक के साथ, और इस समय एक बार फिर पानी के विश्राम के बाद मुकाबला शुरू होता हुआ और नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। बीच मैदान में जाहिद लेफ्टी और बॉयमीर की जोड़ी, और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, निर्णायक कांटे की टक्कर का मुकाबला, और यहां से विजयी टीम जो होगी वो सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी। तो ये कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर भी दोनों बल्लेबाज जानते होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है यह मुकाबला उनके लिए। कांटे की टक्कर का मुकाबला है, और क्रिकेट की भाषा में कहे तो करो या मरो की स्थिति है बीच मैदान में बने हुए। एक बार फिर इस ओवर में अगली बार नेवर की शुरुआत लेकर के तैयार, और सामने है उनके जाहिद लेफ्टी। देखना है किस प्रकार से वे यहां से गेंदबाजी करेंगे। हालांकि अभी भी आधा सफर तय करना है यहां से। एक निर्णायक और महत्वपूर्ण मुकाबला बीच मैदान में फ्यूचर वर्ल्ड T20 प्रतियोगिता वर्ष 2022 के अंतर्गत ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जो कि RPCC वाथोरा और GGC हुमामा के विरुद्ध चलता हुआ खूबसूरत मैदान, और
सराश्री यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को जाता है जिस प्रकार से इस मैदान को बनाने में बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है और एक संकल्प लिया है यहाँ के युवा क्रिकेटर्स के लिए इस इस प्रतियोगिता का सफल आयोजन करके। और इस समय ये अंतिम चरण में है, यानी कि दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आरपीसीसी वाथुरा और जीजीसी हुमामा के विरुद्ध चलता हुआ। खुर्शीद पॉल हमारे साथ बने हैं बड़ी आमर के साथ, आमिर सुहेल भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। नए ओवर की शुरुआत तिरछे बॉल रन के साथ क्रीज के कोने से पहली गेंद जाहिद लेफ्टी के लिए उस बार खेला जरूर उस और खिलाड़ी सीधे उनके हाथ में, हालांकि रन लेने की कोशिश वहां पर जाहिद द्वारा, लेकिन जैसे ही देखा गेंद सीधे क्षेत्ररक्षक के हाथ में, सुरक्षित अपने कदम क्रीज में खींचे, रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। और जाहिद लेफ्टी पर काफी कुछ निर्भर करेगा, हालांकि एक अनुभवी बल्लेबाज है और ऐसे में आत्मविश्वास और संयम के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। एक बार फिर राइट आर्म ये गेंद, उस बार लेग स्टंप पर हल्के से उसको दिशा दे दी, कोई मौका नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, गतिशीलता देते हुए स्कोरबोर्ड में और अच्छी रणनीति है, खराब गेंदों को सही नसीहत, अच्छी गेंदों का सम्मान रखते हुए सिंगल्स डबल से स्ट्राइक को रोटेट रखनी होगी, एक मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति बनानी होगी वहां पर गेंदबाजों पर। शौकत जागल, ओवैस भट्ट और शब्बीर अहमद गनाई भी हमारे साथ आरिफ भट्ट के साथ इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण गोगो बडगाम के इस खूबसूरत मैदान से आप तक पहुंचता हुआ। एक ओवर की गेंदबाजी, हालांकि इस ओवर की गेंदबाजी लेकर के तैयार और सामने है जाहिद लेफ्टी, उनके लिए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर अच्छी गेंद कलाइयों के सारे सीधे बल्ले से सम्मानजनक रूप से खेला। ये देखते हुए खिलाड़ी को काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी जब तक वे गेंद तक पहुंचते और चहलकदमी करते दोनों बल्लेबाज ने अपने छोड़ बदल लिए। एक रन और एक दाएं हाथ का बल्लेबाज और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में जीजीसी हुमामा की ओर से इस पारी को आगे बढ़ाते हुए। मार्वल, उमर मंजूर, बड़ी आमिर और मोहम्मद यासीन शेख भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। जुड़ जाइए, लाइक और शेयर करना ना भूले ताकि अन्य लोग हमारे साथ जुड़कर जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से इस खूबसूरत सेमीफाइनल मुकाबले का आनंद ले सके। इस ओवर में अगली बार इस बार दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए वाइमीर, इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर हल्के से उसको खेला जरूर, जब तक उसको खुद गेंदबाज फील्ड करते तब तक पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ और जिस प्रकार से इस समय वातावरण जो है खूबसूरत क्रिकेट के अनुकूल और ऐसे में एक बेहतरीन मुकाबला बीच मैदान में, हालांकि आज कुछ विस्फोटक पारी जरूर देखने को मिली थी, पहले इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से और उसके बाद तौसीफ खान के बल्ले से, लेकिन एक बड़ी पारी में अपनी उस पारी को परिवर्तन नहीं कर पाए, जिसके चलते 3 बल्लेबाज हिलाल, जाहिद, इम्तियाज लेफ्टी, क्षमा कीजिएगा, जाहिद लेफ्टी समय नाबाद है। इस बार अच्छी गेंद मिडिल स्टंप पे आती है, अंतिम समय में उसको दिशा दे दी, वहां पर मौका हो सकता था, अगर सटीक थ्रो स्टंप्स पे लगता तो खतरे में पड़ सकते थे, लेकिन गेंद उस ओर कोई खिलाड़ी बैकअप नहीं कर रहा था, सीमा रेखा से बाहर निकल गई। उपहार के रूप में यह चौका मिलता हुआ और इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। शब्बीर अहमद गनाई हमारे साथ बने हुए हैं, गनाई राज के साथ आरिफ भट्ट भी इस मुकाबले का आनंद लेते। धन्यवाद आरिफ भाई और मुसव्वर महराज, मोहम्मद आकिब भट्ट और जावेद अहमद भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए, अपना समर्थन सहयोग देने के लिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार और विचार देते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए ताकि आने वाले समय में जेके स्पोर्ट्स टाइम बेहतर से बेहतर सीधा पसा आप सभी चाहते व्यूअर्स तक लेकर के आए। इस ओवर में अगली बार ऐसे भट्ट भी हमारे साथ बने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब आपका अपना प्यार विचार देने के लिए। इस ओवर में अगली बार ये गेंद, अच्छी गेंद मिडिल स्टंप पे आती है, अंतिम समय में उसको कलाइयों के सारे दिशा जरूर दे दी थी, लेकिन उस ओवर खिलाड़ियों ने गेंद को फील्ड कर लिया, 30 गज घेरे के अंदर, ओवर पूरा हुआ। और इस प्रकार से लगातार प्रयास जरूर कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, हालांकि अभी भी करीब करीब 9 ओवर का आना बाकी है, तो ऐसे में दोनों बल्लेबाज यदि अंत तक बल्लेबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मीर आसिफ, सैम आकिब और मीर सरवर भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए डार शाहिद के साथ 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं और खान इम्तियाज हमारे साथ बने हुए हैं। ऊडी से बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज भाई आपका। आमिर सुहेल भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए नए ओवर की शुरुआत, और देखना है गेंदबाजी के मोर्चे पे रियाज पीर एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे, और देखना है किस प्रकार से भी यहां से गेंदबाजी करेंगे। हालांकि सिमनान सुहेल हमारे साथ बने हुए इलियास हुसैन के साथ, और शब्बीर अहमद डार और डार रियाज भी सैम आकिब के साथ इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। रियाज भी जाहिद लेफ्टी के लिए, उनकी ये गेंद, इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, बैकफुट पर अपने आप को संतुलित करते हुए निकाला, लेकिन उस और खिलाड़ी जब तक गेंद उनके हाथ में पहुंचती तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था 1 रन लेने का, 1 रन से ही संतुष्ट और स्कोर आगे बढ़ता। हालांकि हमारे पास अभी जानकारी नहीं पहुंची है ऑफिशियल स्कोर बोर्ड से कि कितने रन अभी तक बना लिए हैं जीजीसी हुमहामा की टीम ने। यह पारी का संभवतः 12वां ओवर प्रगति पर गेंदबाजी का दायित्व रियाज पीर के पास। उमर रजा
जहीर अली और जाफर भी हमारे साथ बने हुए हैं मीर मुंतजिर के साथ। इस बार रियाज पीर की ये गेंद उसको दिशा जरूर देती थी, वहां पर गैप में निकलने की कोशिश, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वहां पर गेंद सीधे क्षेत्र रक्षण के हाथ में और रनों की गति में अभी भी कोई वृद्धि नहीं, रनों की गति में थोड़ा सा अंकुश लगा हुआ है। अगर इस ओवर की बात करें रियाज पीर की, 96 रन। इस बार अच्छी गेंद और गेंद को निकाल दिया, उस और खिलाड़ी है तैनात, 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन से ही दोनों बल्लेबाज संतुष्ट और स्कोर बढ़ता हुआ 97 रन। धन्यवाद स्कोरर 97, 3 विकेट के नुकसान पर जीजीसी हुमामा हालांकि टॉस हारने के बाद आमंत्रित तौर पर पहले बल्लेबाजी करता हुआ आरपीसीसी वाथोरा के विरुद्ध। मीर आसिफ, शौकत जागल और शबीर अहमद भी हमारे साथ बने हैं पहलगाम से। रियाज पीर हैं गेंदबाज, जाहिद लेफ्टी के लिए। इस बार ऑप्शन से काफी बार लपेट करके मारा, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा से बाहर। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, 6 रनों का इशारा आता हुआ और जाहिद के बल्ले से निकलता दर्शनीय स्ट्रोक यहां पर 6 रन और इसके साथ ही 100 रन पूरे होते हुए और कुल योग 103 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हालांकि अभी भी 7 विकेट हाथ में है जीजीसी हुमामा के पास और एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर समय दोनों बल्लेबाज यदि यहां से 30-40 रनों की और साझेदारी जोड़ लेते हैं, जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज बेहतरीन और लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए। राजवीर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं मोइनुल इस्लाम के साथ और गाजी जावेद भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये सीधा प्रसारण, गोगो बड़गाम के माध्यम से इस सीधा प्रसारण में आप हमारे साथ बने हुए हैं। फ्यूचर वर्ल्ड T20 क्रिकेट प्रतियोगिता वर्ष 2022 का दूसरा सत्र और जेके स्पोर्ट्स टाइम सीधा प्रसारण आप तक का पहुंचाता हुआ प्रायोजक शाइनिंग स्टार पामपुर, MHM, आर्को फैन स्टेशन, रियल एस्टेट पामपुर, फैशन फीसा एंड स्पोर्ट्स इंडिया। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, वहां पर हालांकि अपने आप को जरूर बचाया नानसा के चोट पर बल्लेबाज ने, लेकिन तब तक पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ, हालांकि अभी भी एक गेंद बची है इस ओवर की। 104, 3 विकेट के नुकसान पर हमारे साथ मुनव्वर जुड़ चुके हैं। And that was a terrific shot from the blade of Zaid lefty, and Boumir saving himself, and in that process he falls on the ground. Oh, that's in the air, and chance for Imtiaz Mullah, can't convert this one, and ball flies over his head, and we'll have to wait and watch. Decision is yet to come, and now the umpire signals it's a boundary, and that was lifted up shot, and Boumir is just talking that I was trying to chap that one upishly over extra cover, but he manages to do so, but it was straight down to the throat of Riaz Mullah, but Imtiaz Mullah says that I lost the ball due to the sunlight perpendicular on his eyes, and in that process Boumir survives. Score moves to 108 for the loss of 3 wickets. We are in over number 13 of the match, 12 done and dusted. Hilal Junaid and Tausif Khan, these are the 3 batters who have been sent packing today, Nazir, early this afternoon. And Khurshid Paul writes in, both the commentators deserve ICC best commentators of the year. Thank you for your love and support, and Khurshid Paul for your love and support, and Iqbal Ashraf, and he says that Sanjay Banerjee ki exactly it reminds me, you people, of great Sanjay Banerjee. Sheikh Nazir is at its best always. In the meantime, fresh show begins from and Nawaz bought, and I would definitely love to entertain you guys, but it's unfortunately, and why are you irritated, why are you annoyed about that one? Oh, that's a good shot, beautifully done, but can't beat the field at gully area, so that's a dot ball. Score man Nazir 108 for the loss of 3. We are in over number 13. Next ball coming up, and this is the beautiful sports field here at GoGo Badgam, and thanks to Sports Council for bringing up this very sports field. Asif Pare writes in, thank you for your love. Moinul Islam and Shan Ishwaq, Amir Sohail and others. Next ball, and pulling that one and all the way down to the final boundary for 4. And on that occasion, pitched in short, dug in short, and allowing batsman Zaid Lapti to go at it, and he pulling that one and connecting that one and middle to that one down to the final boundary for 4. Score moves to 112 for the loss of 3. Next ball coming up, and there was no need to dug in short, there was no need to threaten the batsman. Oh, that's a good ball. Lord batter line on that occasion, pitching on good length, then drifts quite a bit outwards and on that occasion on middle and off, and batsman Zaid Lapti circumspect, playing it back to the ball of an run. Dot ball 112 for 3. Next ball comes in and bows that one. Oh, that's gone upish Indian, and all the way for 6 over mid wicket, and what a shot from Zaid Lapti on that occasion, fetching that one from outside the off stump, and
sends that to mid wicket for 6, and what a shot quite middle to that run, and that's coming out of the carpet of the blade, meaty part of the blade, and that's gone all the way up. Is gone for run 6 of those, and with that 6 goes to 118, and now Riaspi looks pretty much concerned about the flow of runs at the moment, and he is talking to wicketkeeper Race Kohli how to work on the basics from here on, how to deny them freebies, and Musawir Miraj writes in, thank you. Thank you for hello, and Musawir Miraj, and you're absolutely right, and it isn't easy to compare we people with that very international arena commentators, but we're really thankful to still you giving respect, and you're still bearing with us, and time and again thank you Ghazi Javed and others. But that was a wonderful shot, smoked away, and next ball, that's a good ball out there, running for that one, in the end made it look easy. Score moves to 119 for the loss of 3 after the, and we are just in over number 13, and Mohammad Suwaid writes in, we're in the back of Tausif Khan Taskan, we're in the back of Sheikh Hilal and Junaid. Imtiaz Lepti was the first man to go, followed by other two, and Innocent Lava, thank you, Mohammad Suwaid and Ghazi Javed, and Innocent Lava, lots of love, thanks for you, and Sam to you from our side. Oh, look at that run, what a shot, no need to run for those, flat batter, 6 more. And Boymir joins the party in style on that occasion, drifts down the leg side, and Boymir shuffling across quite a bit, fetching that one from outside the off and all the way down to the back with Skellig boundary for 6. It's 125, 150 on the board for the loss of 3 after 13 overs. मुनव्वर भाई, यहाँ पर एक बात और देखने को मिली कि किस प्रकार से आत्मविश्वास के साथ गेंद को मिडल कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से, और पूरा वजन पिछले पांव पे लेते ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को लपेट करके मारा और निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, और छक्के के साथ ही ओवर भी पूरा हुआ। 125 हो गया है कुल योग 13 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज हिलाल, शेख हिलाल, और उसके बाद इम्तियाज लेफ्टी और तौसीफ खान, ये 3 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। बीच मैदान में बॉयमीर और उनके साथ जाहिद लेफ्टी, बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन समय बीच मैदान, विस्फोटक बल्लेबाजी दोनों छोर से। यदि अब बात करें टीम जीजीसी हुमामा की इस निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले में, रियाजपीर को लगातार उस छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया है, और देखना है वे किस प्रकार से क्या इस साझेदारी को तोड़ने में सक्षम हो पाते हैं अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इधर सभी व्यूअर्स का एक बार फिर जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन और स्वागत करना चाहेंगे। इस ओवर में अगली बार, इस बार धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप पर, खूबसूरत क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन, जितनी भी प्रशंसा की जाए वहां पर क्षेत्र रक्षण की उतने कम, निश्चित तौर पर यहां पे रन बचाए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। लाजवाब प्रदर्शन, और दर्शा दिया कि किस शैली के वो क्षेत्र रक्षण है, बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन क्षेत्र रक्षण दौड़ा। जावेद, तनवीर मीर, बड़ी आमिर, जान मोहम्मद भी हमारे साथ बने हुए। इस बार ऑफ स्टंप पर लपेटा जाहिद लेफ्टी ने, और गेंद स्टेडियम से जा बाहर लगी है 6 रनों के लिए। एक और छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ, दर्शनीय स्ट्रोक, और क्या कहना इस बल्लेबाज का, एक आत्मविश्वास भरी पारी, और ऐसे में जिस शैली के बल्लेबाज है उस शैली के अनुरूप इस समय बीच मैदान में बल्लेबाजी करते हुए इनोसेंट लवर भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस बार अगली गेंद, लेकिन हवा में उस ओर खिलाड़ी नहीं है, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गैप का इस्तेमाल, लेकिन अब जाके जब तक उसको फील्ड किया जाता तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था। संभवतः गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी है, हैंडल के पास जाके लगी है, ऐसे में 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ वहां पर जाहिद लेफ्टी का। इनोसेंट लवर, बहुत बहुत धन्यवाद, और जाहिद मलिक भी हमारे साथ बने हुए। मैं शेख नजीर, और मेरे साथ मुनव्वर तनवीर डार, जो कि हमारे सहयोगी इंग्लिश कमेंटर हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के, आपके साथ बने हुए, आपकी सेवा में उपस्थित, और इस समय लगातार प्रयास होते हुए, और कुल मिलाकर अगर बात करें तो 132 रन बना लिए हैं 14वें ओवर में। हालांकि ये 14वां ओवर प्रगति पर गेंदबाजी का दायित्व वहां पे रियाज पीर के पास। मोहम्मद इश्तियाक हमारे साथ बने हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। और शेख जान भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए बीरवा से। रियाज पीर की गेंद फिर जगह दी, इस बार अपने आप को संतुलित करते हुए बैकफुट पर जाकर के जबरदस्त प्रहार करने की कोशिश है, लेकिन उस और खिलाड़ी तैनात, हालांकि उनको भेद नहीं पाए, और 1 रन और खाते में जुड़ता। 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज, और 134 जा पहुंचा स्कोर 14वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पे। 7 विकेट हाथ में है, और कहना चाहिए कि एक बेहतरीन प्रदर्शन अब तक बल्लेबाजी में देखने को मिला है दोनों छोर से। जाहिद लेफ्टी के लिए इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर के अंतिम समय तक आत्मविश्वास के साथ हल्के से इसको प्लेस किया, हालांकि काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी वहां पर फील्डर को, जब तक उसको फील्ड करते, थ्रो करते पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। 1 रन के साथ ही स्कोर 135।
3 विकेट के नुकसान पर दाऊद रशीद, फैजू, मोहम्मद गजनवी और एजाज डार भी हमारे साथ बने हुए हैं। अल्ताफ अहमद मागरे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इनोसेंट लवर भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए नॉर्थ कश्मीर से बहुत बहुत स्वागत सभी व्यूअर्स का। चहीते व्यूअर्स के कारण इस समय ये सीधा पसंद आप तक पहुंचता हुआ। रियाज भी इस ओवर में अगली बार, इस बार बॉय मीर के लिए, और अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर के, हालांकि उसको खेला जरूर था कट के अंदाज में, उस ओर खिलाड़ी थे तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, ओवर पूरा हुआ और 14 ओवर समाप्त, 136 रन इस समय जीजीसी हुमहामा का स्कोर। 3 विकेट के नुकसान पर शेख हिलाल, इम्तियाज लेफ्टी और तौसीफ खान, ये 3 दिग्गज बल्लेबाज इस समय जीजीसी हुमहामा के आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। बीच मैदान में बॉय मीर और उनका साथ देते हुए जाहिद लेफ्टी, क्या बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन। हालांकि इम्तियाज लेफ्टी ने आज 25 रनों का योगदान दिया था, हिलाल ने 6 रन बनाए थे और तौसीफ खान ने भी करीब करीब 15-20 रन बनाए होंगे। हमारे पास ये जानकारी नहीं है एग्जैक्ट के कितने रन बनाए, लेकिन बहुत जल्द हमारे स्कोर बोर्ड से ये जानकारी मिल जाएगी और हम अपने चहीते व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहेंगे। फिलहाल मुजफ्फर अहमद गनई हमारे साथ, सैयद तालिब बुखारी के साथ इम्तियाज भट्ट और इशफाक इलाही भी इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से गोगो बडगाम का ये खूबसूरत मैदान, जो कि जेके स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा ये एक बेहतरीन और खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान बना हुआ, जिससे ये सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से प्रतियोगिता फ्यूचर वर्ल्ड T20 क्रिकेट लीग गोगो 2022 दूसरा सत्र और मुकाबला दूसरा सेमीफाइनल, जो कि RPCC बडगाम और GGC हुमामा के विरुद्ध चलता है। उन श्रोताओं के लिए जो देर से जुड़े हो हमारे साथ, उनके लिए बताता चलूं कि आज इस निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीता RPCC वाथुरा की टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और इस समय 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट पर 136 रन बना लिए हैं जीजीसी हुमामा की टीम ने। 3 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए हैं। नाबाद, जाहिद लेफ्टी और उनका साथ दे रहे हैं बॉय मीर, इशफाक इलाही, एक्रोनियम अरशद और जान मोहम्मद भी हमारे साथ बने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। इस समय 136 नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद इस बार इम्तियाज मल्ला की गेंद जाहिद लेफ्टी के लिए खेला, उसको हालांकि अजीब ढंग से खेलना कहीं और चाहते, गेंद कहीं और गई। 1 रन पूरा जरूर किया वहां पर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 137 रन 14.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। तनवीर डार भी हमारे साथ बने हुए इस मुकाबले का आनंद लेते हुए और राज मोहम्मद भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सभी व्यूअर्स से एक बार फिर निवेदन होगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूले। एक निर्णायक मुकाबले से बीच मैदान में अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, जबरदस्त प्रहार करने की कोशिश, पूरी तरह से वहां पर छकाया और गेंद विराम करते विकेट कीपर रईस कोहली के दस्ताने में। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, 137 15वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पे। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से इस बार फिर ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद इसको निकाला, लेकिन उस और खिलाड़ी है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, हालांकि सफाई के साथ गेंद कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 138 रन। अहमद नजीर अभी हमारे साथ बने हुए हैं मुसव्वर महराज के साथ और जाहिद लेफ्टी, जहां हमारे पास सूचना मुसव्वर भाई आपकी पहुंच चुकी है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जाहिद लेफ्टी ने कितने रन बनाए हैं हमारे स्कोर बोर्ड से। हालांकि जो ऑनलाइन स्कोरिंग है क्रिक हीरोज वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। अच्छी गेंद वहां पर, क्या खूबसूरत कैच लपका है, जितने भी प्रशंसा की जाए। सिंगल हैंडेड और एक हाथ से गेंद आने के बाद छिटकी, लेकिन दूसरे प्रयास में उसको जो है लपक लिया और उत्साह का ठिकाना नहीं है यहाँ पर RPCC के। क्या बेहतरीन लाजवाब अंतरराष्ट्रीय स्तर का कैच पकड़ा है मनोहर भाई। This is a blinder of a catch. There are show back with a Scarag, and what could have been a boundary. For a while he thought that he might be fetching a boundary out of it, and what a take, what a go ball on second attempt. And it was in the back of the danger man, Zaid lefty walking back to the pavilion. Zaidar, good undone on that occasion. For a while it looked like that this might run down to the boundary, but that wasn't the case, and it was in the back of Zaid lefty. So it's 4 down at the score of 137, and this is a welcome sign and a welcome breakthrough coming RPCC Wathoura's way. And Beriame writes in, and Amir Sajjad, Junaid, Dar Nisar and Beri Amir and others, thank you for your love and support. You can join us in numbers and catch all the fun, the drama coming your way from this beautiful sports field of Gogo Bidgam, and you can see the beauty of the centre at the moment, and what a beautiful centre we have had here in Gogo Bidgam. And this is second semi-final of future T20 Cricket Tournament
Year 2022 second edition coming your way live and exclusively through GGC Sports Time, and we'll have to thank all the beloved viewers and the sponsors of GGC Sports Time. And Sophie Sajjad wants to know the playing 11 of RPCC. And Imtiaz Malla will be bowling, and on strike will be Dr. Sajjad. And here comes Imtiaz Malla, the very first ball, and Sajjad playing it down towards the mid-off. Chance of a run out, chance of a run out. We'll have to wait and watch. Shot for run out, and they're still appealing, and umpire raises the finger. Can you believe this is the wicket number 5? And he can't believe his luck, but he will have to walk back. Unbelievable decision and coming. And 5th one bites the dust. Nazir, what a way. And this is really unbelievable scenes out here at the centre. And GGC Humhama losing their way all of a sudden. And this is the beauty of the game of glorious uncertainties, and that's why I love to throw it out time and again. The game of glorious uncertainties can be harsh on you in a given day. Thank you, Mohammad Altaf, for your Akrani, and Junaid Habib, thank you for your love and support. In the meantime, we are seeing the back of 5th one. And Fatan walks into the middle after the fall of Doctor, and Doctor can't believe his luck. But he will have to leave the centre as early as possible. He does so, but he looked back in display, but umpire took time. And Sultania Foods and Junaid Habib, Majid Altaf, Akrani Arshad, Bajaved and others, thank you. But what a breakthrough, and he will remember it for ages to come, for years to come. And this was a really wonderful feeling stance on the occasion on the very ball one. Dr. Sajjad losing his wicket in the form of run out. None the way a batsman would love to go out, and he would love to lose his wicket on the very first ball. And Arvind and Sheikh Idris and others, thank you. News coming to our com box right now that Riaz Pir, he isn't feeling well today, but he is still playing. He's a legend, no doubt. Sheikh Idris, thank you for your love and support. Dad Zaid, Aryan Irfan, Mir Altaf and Nazir Ahmad and Mermus Prince and others, thank you. He's talking about Basit, which run out, and he's talking about that is that a run out. But that was a very good decision in the end. Umpire took lot of time to understand whether the bat was behind the crease or not, whether it was whether he managed to land the bat or not behind the crease. But I think it was in the air on that occasion. That was a pretty spot on throw, and that shy, and that yielded a breakthrough. Fly down, consistent watching. Thank you, Majid Altaf, for your love and support. Watching from Medina. Mohammad Suwaid writes in, Imtiaz left to score those vital 25 runs that got a 50 to him. Miraja, thank you. Mohammad Suwaid, Majid Altaf and Mermus Prince. Imtiaz lefty, Tawsif and Hilal Sheikh, Dr. Sajjad and Zaidar. These are the batters who have been sent packing. Mohammad Rafiq, great quality of voice. Thank you for your love and support. And thank you, Mohammad Rafiq, for your love and support. We're really thankful to you, and I'm really indebted to your love from myself and Inaitul Amani and others. Thank you, Nazir. All of a sudden losing the track, they have been detract where they were, and they were really cashing on with those big hits. And Shahid Sofi, thank you. But Nazir, the cricket can really change its class on a given day, and the way today cricket changing its class, it's really unbelievable scenes out here at the centre, and they're really stunned at the moment, and they're looking perplexed. And look at Dr. Sajjad, he was unable to understand, he was unable to believe that run out decision. But this is the game of glorious uncertainty. Things can be harsh on you on a given day, and the way things are again changing, and the cricket is changing its class from bad to worse, from worse to worse sitting at the moment. मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और क्रिकेट की यही मानता है। हालांकि जब जाहिद लेफ्टी और बॉय मीर खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद 180-190 का लक्ष्य होगा, लेकिन एकदम से एकाग्रता भंग हुई। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, कब अनिश्चितताएं घटेगी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, और बिल्कुल उसी विपरीत यहाँ पे देखने को मिला, जिसके चलते इस समय हालांकि 134 पे 3 और इस समय 136 पे करीब 5 विकेट गंवा दिए है टीम ने। तो यही क्रिकेट की मानता है, क्रिकेट की खूबसूरती
और ऐसे में इस समय बीच मैदान में कहना चाहिए एक नए हर्षोल्लास के साथ बॉडी लैंग्वेज आप देखिए आरपीसीसी के गेंदबाजों की। रियाज पीर जो कि हालांकि आज उस मुद्रा में नहीं थे, खेलने की मुद्रा में नहीं थे, लेकिन फिर भी क्रिकेट के प्रति उत्साह देखिए और इस मुकाबले में खेलते लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, हालांकि बैकफुट पर जाकर के इसको मोड़ना चाहते थे, सफलता जरूर मिली लेकिन एक ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। एक रन और खाते में जोड़ता हुआ ये पारी का संभवतः 16वां ओवर प्रगति पर है। 137 हो चुका है कुल योग 5 विकेट के नुकसान पर। सोहेल पठान और उनके साथ दूसरे बल्लेबाज जो कि बीच मैदान में बने हुए हैं। 137 जुनैद लेफ्टी जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पे लगे हुए हैं। इस बार ऊंचा लंबा स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। क्या दर्शनीय स्ट्रोक खेला है, जैसे ही गेंद उनके रडार में मिली और उसको निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। दर्शनीय स्ट्रोक जुनैद लेफ्टी की गेंद पर सोहेल पठान द्वारा और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 143 जीजीसी हुमहामा का आरपीसीसी वाथोरा के विरुद्ध। आकर्षक और दर्शनीय पारी इस समय बीच मैदान में चलती हुई पारी का ये 16वां प्रगति पर और गेंदबाजी का दायित्व जुनैद लेफ्टी के पास। सोहेल पठान सामना करने के लिए तैयार। 143 5 विकेट के नुकसान पर यह गेंद इस बार बेहतरीन स्ट्रोक सीधे बल्ले से खेलो, हालांकि अपने पॉलोथ्रो में जरूर फील्ड करने की कोशिश की थी लेकिन इस बार सफलता नहीं मिली और दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था एक रन लेने का। एक रन से ही संतोष दोनों बल्लेबाज। 144 5 विकेट के नुकसान पर पारी का 16वां ओवर चलता हुआ। और अगर बात करें फ्यूचर वर्ल्ड T20 क्रिकेट प्रतियोगिता वर्ष 2022 के अंतर्गत बड़ी आमिर हमारे साथ बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूअर्स का स्वागत करना चाहेंगे, हार्दिक अभिवादन करना चाहेंगे। इसी प्रकार से अपना प्यार विचार देते रहिए और यदि आप चाहें तो आप डिजिटल स्टार के जरिए भी आप हमें सम्मानित कर सकते हैं और अपना सुझाव भी रख सकते हैं। इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, हवा में है गेंद लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। एक और दर्शनीय स्ट्रोक और गेंद 6 रनों के लिए। 6 रन अर्जित करते हैं वहां पर बल्लेबाज। छक्के के साथ स्कोर बढ़ता। बॉयमीर के बल्ले से निकलता हुआ ये एक और जन्नतेदार स्ट्रोक। आग उगलता हुआ उनका बल्ला ऐसे समय में और 150 रन लगभग पूरे हो चुके हैं जीजीसी हुमहामा के आरपीसीसी वाथोरा के विरुद्ध। Boymir has sent 4 balls out of the park and that was another mighty huge hit out of the park. Junaid Lefty is under the he's at the receiving end at the moment. 2 sixes against him. 1 to lefty and 1 to the right hander, and look at that one. Cuts that one down to the back with a point. Both the bats are going to come back with a no, doesn't, just a single. 155 for the loss of 5 wickets, and somebody writes in. Ijaz AG writes in, and you may find somewhere else. You may go somewhere else, and there is no need of you. Vidat Kashmir and others, thank you, Vidat and Kashmir, thank you for your. Oh, that's in the air. 2 men converging, won't get you the ball, and that's another boundary. Nazir, it's running boundaries here at the center. Flurry of boundaries to GCC Humhama at the moment. They were down and out, and all of a sudden, an over from Junaid Lefty brought them back into the match. They're back on track again, and they're again breathing alive here at the center. And this is the beauty of the game of glorious uncertainties. Once again, we can't take credit away. My dear beloved commentator, we can't take credit away from the game of glorious uncertainties. Based on the principle of the game of glorious uncertainties, you can see that uncertainty everywhere around the park. In an over, you're getting rid of 2 of the batters. It's 5 down. In the very next over, you have been taken to the cleaners, and they're back into the match again, and they're roaring aloud at this very crucial juncture. Then a 155 for the loss of, no, it's 159 to be precise. Now with that boundary for the loss of 5 wickets. 159 5 विकेट के नुकसान पर तेज तरार शुरुआत यहाँ पर और ये आखिरी ओवर जो होंगे यानी कि बचे हुए 3-4 ओवर और ऐसे में जबरदस्त प्रहार करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि आधी टीम पवेलियन लौट चुके हैं, आधी टीम अभी भी बची है, 5 खिलाड़ी हाथ में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जबरदस्त प्रहार देखने को जरूर मिलेगा दोनों छोर से, चाहे वो बॉयमीर हो चाहे सोहेल पठान हो। और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले में। इम्तियाज मल्ला है सबसे गेंदबाज और दाएं हाथ से भी गेंदबाजी करते हैं और की शुरुआत थी। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद स्टंप पर खेला, 2 खिलाड़ियों के बीच में से बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। तो स्ट्रोक के साथ स्कोर उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ गतिशीलता देते हुए स्कोरबोर्ड में और 163 पे जा पहुंचा है 5 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर में।
Well, that boundary bisecting gully and backward a point down to the boundary for 4, and Bomir is turning this match on its head, and look at that one. He was trying to sweep that one. It doesn't succeed, but up the inner edge, up the queue and down to the backward scare, another run added to the tally, and they need that run. They got that run, and they will take each and every run. It doesn't matter how they come, but they should get the runs. Whatever comes, bowling sideway, batting side need runs, and with that run, there is one more run added to the tally. Sophie Sajad writes in Kismat Chiti, and he's talking about that run out call of Sajad, and he believes that he could have done more destruction. And look at that turn, wicketkeeper fumbles and all the way down to the boundary. 4 byes and 4 gifted runs. Race Kohli has to work on the basic wicket-keeping tactics, and at the moment you can see that the ball goes through his gloves and down to the boundary. 4 more runs added to the tally. Boimir and Irfan left here. It is Pathan out in the middle. Oh, look at that one, it's in the air. 2 men converging. Sama gets to the ball. 6-1 bite is the dust. Benazir, it's belatedly, and this breakthrough coming lately, because we've seen that the over prior to this one, and Boimir and his colleague, they were really taking them on, and Pathan all of a sudden is walking back to the pavilion, but Pathan has done the destruction, and he announced it himself, and he was trying to flourish his innings, but were cut short, but were unable to do so. But now they have a good score on the board. Believe me, the ball isn't coming nicely onto the bat. There is something in the wicket for the bowlers and for the pacers, and if you manage to bowl in the right areas, you can really tease and annoy the batsman time and again, and it is really irritating. We've seen from the very ball one, if the bowler manages to bowl in the right areas, it is an easy pitch to bat on. मैं आपकी बात से 100% सहमत था, और हालांकि वे आउट होकर पवेलियन जरूर लौटे हैं, लेकिन अपना कार्य वो कर चुके हैं, तेज तरार विस्फोटक पारी, और ऐसे समय में इन परिस्थितियों में जिस कार्य के लिए उन्हें भेजा गया था वे करते हुए, और इसमें पवेलियन लौट चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर 167, और ये पारी का समाप्त है 17वां ओवर फ्यूचर वर्ल्ड T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 17 वर्ष 2022 के अंतर्गत गोगो बड़गाम से सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंचता हुआ बने रहिए। लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक आकर्षक रोमांचक मुकाबला इस समय बीच में दूसरा निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला RPCC वाथुरा और GGC हुमामा के विरुद्ध चलता है। इम्तियाज मल्ला इस बार अच्छी गेंद वहां पर ऑफ स्टंप पर पूरी तरह से छकाया, बल्लेबाज को समझ नहीं पाए, देखते बन रह गए और गेंद सीधे रईस कोहली के दस्तानों में। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, और जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पामपुर, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, आर्को फेडरेशन, MHM रियल एस्टेट पामपुर, फैशन पिस्ता। धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का, और सभी व्यूअर्स का से भी निवेदन होगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इस ओवर में अगली बार इम्तियाज मल्ला की गेंद ऑफ स्टंप पर फिर जगह मिली थी, जबरदस्त प्रहार करने की कोशिश, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर रईस के दस्ताने में। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, ओवर पूरा हुआ, 17 ओवर समाप्त, 169, 6 विकेट के नुकसान पर GGC हुमामा की टीम टॉस हारने के बाद 164, क्षमा कीजिएगा 164 स्कोरबोर्ड पे बताया जा रहा है, और क्षमा चाहेंगे अपने व्यूअर से 164, 6 विकेट के नुकसान पर, और अभी भी 2-3 ओवर का आना बाकी है, और जिस प्रकार से ये दोनों बल्लेबाज बीच में, और प्रयास होगा आखिरी के 2-3 ओवर में यहां से 30-40 रन यदि और जोड़ लेते हैं तो संभवतः 200 का लक्ष्य वे छू सकते हैं, यदि बात करें GGC हुमामा की टीम की। Well, Reyes seems to be in all sorts of trouble, and he's asking umpire, can I leave the centre? He's really in deep pan at the moment, but you can see that athleticism at its peakness here, and he's a real athlete, and he's been playing since ages, even before our birth, and he was playing cricket here in this part of the world, and he has been playing cricket since ages across the valley and outside the valley. 164 after the completion of 17 overs, 3 overs remaining, and Nazir, 3 overs, 18 balls are going to come, and they will definitely love to fetch 35 odd runs from remaining 3 overs. That can really set the tone up for the good chase, and anything near 180, 190. बिल्कुल DX, and you are absolutely wrong for and Umar Bukhari, thank you for allowing and missing you guys, and we really miss you too, but Zan, you're absolutely wrong, and there have been a lot of efforts of different people all together. It's a teamwork which makes the dream work, and you don't know, I worked for this very portal even before all other names. I won't say they were not best, they were really best in the business, but I worked even before him, and then it was 171.75, it was 1,75,000 people were following the portal. Thank you, but Nasir, Umar Bukhari, Sam to you, brother, we also miss you, and we really want your company, and you may join us in next few days.
because a big match coming up. It's a busy schedule for GGC Sports Time, and we're really thankful to Mighty Lord that we are having busy schedule, and we love to work on consistent basis, and we need that. Thank you, Mohammad Musa and others, and you're right in high Sam to you. But it's 164 for the loss of 6 wickets. Pressure begins the very first ball. A good shot from Boimir, but straight to second slip. No run, it's a dot ball, and now Ria Spear understands the role of the slip cordon and has put in 2 slips and a gully, because more of the balls we have seen that going through that corridor of the slip cordon for 4. Nawaz Bhatt writes in. And Nawaz Bhatt, don't worry, and if you are feeling annoyed and irritated, you can listen to my colleague. He's in the com box, and if you feel still problems, then you should leave and you should join other way. And Momin Tariq, thank you. Who's on strike, who's on strike? It's Boimir on strike, and in the meantime, next ball coming up. And that one, Bashart Ali, and pulling that one off his blade down towards the corner, and both the batters scamper through for a quick single, and Boimir brings up his 50, and with that single, Boimir gets to his 50, and a stylish copybook proper innings, and he's shown the composure, and he's shown that tremendous character. He played that tremendous character by getting to the 50 and setting the tone up for a good score and a good match here at the centre. But the next ball coming up on strike is the shot, and that's a good shot, but straight to short extra cover. More above the batters can fetch a single. Yes, it does with that single, and now Boimir completed the 50, and with that single, ERUV writes in something. Mohammad Shafi and Momin Tariq and others. With that single, score moves to 160, 6 for the loss of 6. We are in over number 18 of the match. 3 men behind scare, 2 slips and a gully. Oh, that is in the air. We'll have to wait and watch. 2 men converging. No man gets to the ball. It drops in the no man's area, and the 2 batters will fetch a single. They had ample time in the ball to complete that single with authority, and with that single, there is addition to the tally. And Jahangir Bhatt, and you had a great observation as you go through this comment, and he says that they're wasting the fine death overs. They should cash on, and they have wickets in hand. They should go for the full Monty at this crucial juncture. अंतिम इन ओवर्स में प्रयास करना होगा, बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाना होगा, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा देना होगा. इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेकिन गेंद को ज्यादा दूर नहीं पहुंचा पाया. हालांकि 1 रन जरूर ले रहे हैं दोनों बल्लेबाज. 1 रन से ही संतोष स्कोर आगे बढ़ता हुआ, और यहां से प्रयास करना होगा कि अर्धशतक ये पारी खेल चुके हैं बॉयमीर. क्या लाजवाब विश्वसनीय प्रदर्शन रहा. जितनी भी प्रशंसा की जाए उतने कम. ऐसे समय में जबकि टीम को आवश्यकता थी, लाजवाब प्रदर्शन. 2 स्लिप्स और 1 गली के साथ इस समय समर जो कि विकेट कीपर हैं, और देखना है किस प्रकार से वे यहां से सामना करेंगे बल्लेबाज जो कि बॉयमीर. सामना करने के लिए आमिर मकबूल का इस ओवर में अगली बार आमिर मकसूद. क्षमा कीजिएगा, इस बार ऑफ स्टंप पर 2 खिलाड़ियों के बीच में से बेहतरीन प्लेसमेंट और टाइमिंग के साथ गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए, और दर्शनीय स्ट्रोक के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता है. 174 जहां पहुंचा है संभवतः. ओवर पूरा हुआ 18 ओवर की समाप्ति के बाद. हालांकि इसमें बेहतरीन शुरुआत जो मिली थी उसके चलते यहां पर लगातार प्रहार करना होगा, क्योंकि आखिरी के 1-2 ओवर बचे हैं, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश होगी ताकि एक बड़े विशाल लक्ष्य की ओर टीम अग्रसर हो सके. Well, here interesting comment from your side, but at the moment we definitely love to thank each and every viewer of GGC Sports Time. Together we progress, and it's a teamwork, and you've really been exceptional with us, incredible, and you're really beautiful with us. Thank you for your love. And he says Boimir, a great player, no doubt, but Nasser and Jahangir Bhatt and Boimir need to bat out till the last ball, and they can really go past 180, which will really put them in ascendancy, and their bowlers will get something to bowl out, and they will be getting at least 20 plus odd 21 15 plus odd runs, a kind of extra bit of cushion when their bowlers will come on to bowl. बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि आखिरी के कुछ ओवर बाकी है, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश होगी. एक बड़ा लक्ष्य देना होगा, स्कोरबोर्ड पे एक बड़ा लक्ष्य सजाना होगा, ताकि आने वाले समय में विपक्षी टीम जब बल्लेबाजी करे तो उनके लिए दिक्कत जरूर हो. लेकिन क्या इसमें सक्षम हो पाता था नहीं. पहली गेंद उसको खेला, गेंद हवा में है, नीचे उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं, और देखना है कैच कर पाते हैं. दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को सिर्फ देखते भर रह गए, और गेंद नीचे जमीन पर गिरते हुए कहना चाहिए एक जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज को, और पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास कुछ रन बटोरने का. नवाज भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं.
और उनके साथ सेम ईरू भी इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन करना चाहेंगे। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा साफ तक पहुंचता हुआ प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम, आर्को फेडरेशन, रियल एस्टेट पांपोर, फैशन पिस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया। इसी बीच ये गेंद फिर जबरदस्त स्ट्रोक, एक बार फिर गेंद हवा में, उस और दो खिलाड़ी और देखना कैच कर पाते हैं। जी हाँ, वहां पर खिलाड़ी ने कैच कर लिया और इस प्रकार से 7वें विकेट का पतन होता हुआ हर्षोल्लास का इस समय यहां पर वातावरण, और क्यों ना हो इस बल्लेबाज को किया चलता आकर्षक रोमांचक स्थिति इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की। And that was an easiest one, and that was a wonderful goal ball on that occasion, and not easiest of the catches. But Boimir has to walk back, and Boimir falling at the fag end of the innings. They needed Boimir badly out in the middle, but all of a sudden, but he has really done a job. To be precise, he scored a vital 50 and played the pivotal role in setting up that very total, which is right on the board at the moment. Said Aman, Nawaz Butt writes in. And what's wrong with you, my dear brother Nawaz? But you may hop tabs other way. You can go anyway, and there is no need. Say them on and others. Thank you. But at the moment, what a match underway, and I'm not gonna leave these guys. And they need to work on the basic. They need to learn things. We are in year 2022. People are on mass, and we're still complaining. It's really sorry to say, but at the moment we're seeing the back of a terrific player, Boimir. He was taking them on. And Josh, thank you for allowing I'm really trying my level best. That's why I'm holding Mark to McLeod time and again. And it's because of your love. But that's how you can write us, and you can mention, and you can drop in your comments. And this is assisting feedback. Thank you, Josh, for your love. I'm really thankful to Majid Al Top and others. Thank you. And look at that turn. And bowler believed that he got his man, but the ball popping out of his gloves. And in the end, it was a safe scare for him, an early scare, getting away with it. Abdullah bin Umar and Khan Adil and others. Thank you. Khan Adil will have to wait and watch. Zangirba, thank you. Manawar Bhai, I don't agree with your view about Boimir, as he was there for a long time and really needed. Yeah, absolutely, I totally agree with you. I don't say that he doesn't work very well. He really did well, but at the fag end of the innings, when his team needed, I threw out that way too, but nearly he done the job for his side, but he was unable to held his nerve at the fag end when his team needed badly, because he could have really fetched some more runs, and that could have really take his side to some sort of respectability. Still there are runs on the board, don't worry. इस ओवर में अगली बार उनकी ये गेंद उस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद अपने आप को संतुलित करते हुए खेला जरूरत है बल्ले के साथ, वहां पर मिसफील्ड का नतीजा 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। जॉनी इरफान हमारे साथ बने हुए हैं, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। हालांकि ये कुल मिलाकर पारी का संभवतः 19वां ओवर होगा, और 2 स्लिप्स लगा के रखी है विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से सदैव किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए। और एक बार फिर आरिफ फजल हमारे साथ है, आरिफ अफजल जुड़े हुए इस बार। क्या खूबसूरत स्ट्रोक, बॉलर्स बैक ड्राइवर गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। दर्शनीय स्ट्रोक, जितनी भी प्रशंसा की जाए, आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक, और 4 रन खाते में जोड़ते हुए आरिफ अफजल भी हमारे साथ बने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। और तनवीर रेना इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जेके स्पोर्ट्स टाइम के सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन, स्वागत, धन्यवाद किया जा रहा है पूरी जेके स्पोर्ट्स टाइम की कमेंट्री टीम द्वारा। और इसी प्रकार से अपना प्यार, समर्थन, विचार और सहयोग देते रहिए। यदि आप चाहें तो आप डिजिटल स्टार के जरिए भी जेके स्पोर्ट्स टाइम को सम्मानित कर सकते हैं। प्रतीक्षा रहेगी आपके सम्मान की। दर्शनीय स्ट्रोक, लगातार दोनों बल्लेबाज जबरदस्त प्रहार करते हुए, और ये अंतिम ओवर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहना चाहिए पूरी तरह से भरपूर प्रयोग करते हुए इन गेंदों का। खराब गेंद और बेहतरीन प्रदर्शन, चौका मिला पिछली गेंद से। देखने इस ओवर की अगली गेंद पर किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। उमर फारूक हमारे साथ बने हुए हैं, मोहसिन मुश्ताक के साथ। वालेकुम अस्सलाम। अपना प्यार विचार देने के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़कर इस मुकाबले का आनंद ले सके। फ्यूचर वर्ल्ड T20 क्रिकेट प्रतियोगिता गोगो बडगाम वर्ष 2022 दूसरा सत्र और दूसरा सेमीफाइनल आज के दिन का, जो कि RPCC वाथोरा और GGC हुमामा के विरुद्ध चलता हुआ। हुमामा की टीम पहले बल्लेबाजी करती है टॉस हारने के बाद। इस बार ऑफ स्टंप पर बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन 1 रन मिलेगा। वहां पर खिलाड़ी है तैनात, गेंद उनके चिटकी, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे लेकिन मना किया। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ
तेज तरार शुरुआत, प्रहार जरूर कर रहे हैं वहां पर बल्लेबाज, लेकिन सफलता नहीं मिली है। हालांकि पिछली गेंद पर चौका और इस गेंद पर 1 रन जरूर, तो 2 गेंदों से 5 रन आए हैं। मीर जावेद हमारे साथ, हमारे चहीते रेगुलर व्यूअर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद एहसान शब्बीर के साथ। इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट आमिर मकसूद, उनकी ये गेंदबार गति में परिवर्तन, मिडल स्टंप पे आती हुई गेंद को पहले से भांप लिया था बल्लेबाज ने और वहां पर जगह बनाते उसको निकाला जब तक फील्ड किया जाता। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ और लगातार प्रयास हो रहा है दोनों छोर से। इब्रार हुसैन हमारे साथ बने हुए हैं सीरत सज्जाद के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का हमारे साथ बने रहने के लिए। निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला जो कि फ्यूचर वर्ल्ड T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 17 वर्ष 2022 के अंतर्गत गोगो बडगाम के इस ऐतिहासिक मैदान से प्रसारण आप तक पहुंचता है। इस बार ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार अच्छी खासी रफ्तार के साथ, रफ्तार से इस समय चकमा दिया। हालांकि प्रयास जरूर करना चाहते थे बड़े स्ट्रोक्स के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली और गेंद छकाते हुए सीधे विराम करते विकेट के पर समर के दस्ताने में। एक बार फिर आलम इशफाक भी हमारे साथ, इब्रार हुसैन, मीर जावेद, फयाज भट्ट, बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार विचार देने के लिए। आपके प्यार विचार और समर्थन सहयोग की आवश्यकता है, इसी प्रकार से देते रहिए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ और हर बीते दिन के साथ जेके स्पोर्ट्स टाइम बेहतर से बेहतर प्रसारण आप तक का पहुंचाता हुआ। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई, गिलिया इस समय सीमा रेखा तक पहुंचते हुए, क्या तेज तरार गेंद पूरी तरह से वहां पर कहना चाहिए स्टंप्स को ले उड़ी, तो कुल मिलाकर ये पारी का 7वां विकेट गिरता हुआ और इस प्रकार से अंतिम समय में हालांकि विकेट जरूर मिला लेकिन स्कोर लगभग 180 के आसपास पहुंचता हुआ। डार मुजम्मिल भी हमारे साथ बने हुए हैं, अबरार हुसैन और शाकिर इस मुकाबले का आनंद लेते हुए जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से गोगो बडगाम से सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ। एक सफल आयोजन इस प्रतियोगिता का, जैसे कि अगर हम यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की बात करें जो कि ऑर्गेनाइज किया है गोगो क्रिकेट एसोसिएशन ने मुकाबला RPCC वाथोरा और GGC हुमामा के विरुद्ध चलता हुआ। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की अगर हम बात करें, तारिक अहमद, ओवैस बशीर, शाहिद अमीन, फिरदौस अहमद और इरशाद अहमद, और वहीं पे अगर इस प्रतियोगिता की बात करें, स्पॉन्सर किया है इस प्रतियोगिता का उस्मान स्पोर्ट्स, नौगाम, US ब्रदर्स, रेनबो टूर एंड ट्रेवल्स और ए स्क्वायर लसजन ने। बहुत बहुत धन्यवाद और एक सफल आयोजन इस प्रतियोगिता का। और ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, यहाँ से विजेता टीम जो है वो फाइनल में प्रवेश करेगी। तनवीर डार हमारे साथ बने हुए, जुबैर रशीद के साथ, मंजूर सईद के साथ। तनवीर सामना करने के लिए तैयार, 5 नंबर की जर्सी पहने हुए और इस समय आमिर मकसूद गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाए गए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट तनवीर के लिए, उनकी ये गेंद बस जबरदस्त स्ट्रोक, कोई मौका नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर। क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला है बॉलर के सर के ऊपर से, जिसे बॉलर्स बैक ड्राइव कहा जाता है। 6 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई गेंद तनवीर के बल्ले से निकलता हुआ और क्या बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी अंतिम समय में। और जितनी भी गेंदें उनके पास मिलेंगी और उसका जबरदस्त प्रयोग करते हैं, क्योंकि चाहते हैं यहां से ज्यादा रन बटोरने होंगे। विकेट कोई महत्व नहीं रखता है ऐसे समय में, और ऐसे में 187 रन बना लिया है 7 विकेट के नुकसान पर GGC हुमहामा की टीम ने। डार अमीन हमारे साथ बने हुए हैं बलदेव सिंह के साथ, बलदेव सिंह ठाकुर भी इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, विकेट कीपर चौके, लेकिन वहां पर पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास रन लेने का। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ और बाई के रूप में 188 कुल योग, और इसके साथ ही यहाँ पे संभवतः ओवर पूरा हुआ। 188 रन बनाए, 189 रनों का विजयी लक्ष्य मिला है निर्धारित 20 ओवर में RPCC वाथोरा की टीम को। इस मुकाबले को जीतने के लिए मैं शेख नजीर साथी कमेंटेटर मुनव्वर तनवीर के साथ वापस जेके स्पोर्ट्स टाइम के स्टूडियो लिए चलता हूं इस जानकारी के साथ। जैसे ही दूसरी पारी शुरू होगी हम आपकी सेवा में दोबारा उपस्थित रहेंगे। तब तक का अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।